So I hope all of you are from the engineering background here, right? How many of you are here from mechanical background? And then the civil? And then electronics? Computer science is not there, right? And okay, computer science is also there. Great. So first of all, I would like to thank the college management for giving this opportunity to us. They have given us the topic that I have to speak on this topic, like preparation strategy for the GATE 2024 examination. I think there are first year students are also there, second year is there, third year is there, final year is there. So my presentation will be basically related to your career strategy. I hope there are so many students. I think I'm founding the face who were there in the last time. I came last time also. I think 3-4 months ago. Some students were also there. I'm just recognizing the faces also. So I'm going to talk here about all the career opportunities which are available to you after your this graduation, this BTech, right? See, first of all, I would like to tell you that this engineering profession, what you have chosen, this is the best. This is the best domain. Reason behind this is because this is the only domain by which you can make changes worldwide. There is not any other profession by which you can make the changes, you can make the change in the society or anywhere. Engineering is the only profession by which you can do something for your country, for yourself, for this entire world. There are so many other professions also. This doctors, medical domain is there, other domains are also there, but I think engineering is the best domain. I will prove this thing, right? So I'm going to talk here more. My presentation will be more or less related to, I'm going to relate each and everything with this beautiful exam that is known as the GATE exam. GATE is basically nothing but the graduate aptitude test in engineering. This is an exam which every engineering graduates can write, although now it is also open for the non-engineering background students also. Non-science students can also write this exam. Humanities students can also write this exam, right? So why I told this GATE exam a very beautiful exam, because all the career options which are available with you after you do the graduation, after you do the BTech, all career options, all best career options open through this single exam, which is the GATE exam. See, I'm going to tell some of the options which are available to you after you do graduation, after you do BTech. Immediate job option. Sir, is it, can I get the immediate job option through this GATE exam? Yes, you can do that. Sir, I want to go for the higher studies. Can I get this option through this GATE exam? Yes, you can do this through GATE exam. Sir, I want to enter into the management domain. Can I enter into the management domain through this GATE exam? Yes, you can go through that. Sir, I want to go for the abroad studies. Can I do this GATE exam? Yes, you can do that. Sir, I want to open up my business. Can I do through this GATE exam? Yes, you can do that. I think these are the main 5 domains which you can do after you do this BTech. These are the main options, right? And all these career options are open through this GATE exam. This is the beauty of this GATE exam, that multiple options are available through this single GATE exam, right? So why I'm just focusing more and more GATE, because GATE should be in your blood, because all of you are engineer, all your best career options will open through this exam only, that is the GATE exam. So before I proceed with the GATE exam, see, first of all, I would like to tell you what is basically the history behind this GATE exam. Why this GATE exam started? What was the purpose of starting this GATE exam? See, you know that I already told you these so many options are available through single exam, that is a GATE. But earlier when this GATE exam started, the purpose was to promote the higher studies in the country. After this independence, what was there? What was the requirement to develop a country? See, the need of the hour was to develop this country, and how any country can be developed, that is through the technology only. That is the technology on the way by which you can develop a country. That was the need for that country, because there are so many web series or so many sources are there by which you can already easily recognize that initial years, there was not any more or less focused on the technology part. We were directly importing the technology, but they are just giving us the, they are not importing the technology, we were importing basically directly the
aircrafts or the whatever is the requirement for defense system or anywhere, we were directly importing the things, which is the basically the a big barrier when you do more import as compared to the export. So that was the need of the hour. So then what was the requirement of that country, especially the India, कि जिसमें इतना ज्यादा population है, इतना ज्यादा growth का इसमें यहाँ पे need है. So to promote the higher studies. See, ऐसा नहीं है कि IITs, ISCs ये partition से पहले से भी colleges हैं, but requirement क्या पड़ा इसका start होने का? The main need was, again I told you, as I already told you, that was the to promote the higher studies in the country. So GATE एग्जाम स्टार्टेड, उससे पहले भी मास्टर्स प्रोग्राम होते थे, लेकिन गेट के थ्रू क्या हुआ, दे बेसिकली स्टार्टेड द बेसिकली सॉर्टिंग द स्टूडेंट विच जेन्युइनली वांट टू डू हायर स्टडीज एंड विच जेन्युइनली डू समथिंग ऑन द सम प्रोजेक्ट्स which were available for the country, which was the requirement of the country. उस प्रोजेक्ट पे आके काम करो और एक सोल्यूशन दो जिससे हर किसी के लिए बेनिफिट मिले. सो रिक्वायरमेंट क्या था, हायर स्टडीज को प्रमोट करना. अर्लियर क्या हो रहा था कि 10th कर रहे थे, 8th कर रहे थे, 12th कर रहे थे, बीटेक कर रहे थे, सभी अपनी जॉब में एंटर कर रहे थे. ऑल्दो दैट इज द मेन थिंग कि आपको जॉब क्रिएट अगर आप कर रहे हैं, अगर आप इफ यू आर क्रिएटिंग द जॉब, दैट इज द मेन थिंग फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री. लेकिन अगर यहां पे तुम कोई चीज बना ही नहीं पा रहे हो, एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो डेवलपमेंट वाला जो फेज है वो कभी आएगा ही नहीं. सो दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड दिस गेट एग्जाम, कि जिसके थ्रू मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट किए, मास्टर प्रोग्राम स्टार्ट किए, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम स्टार्ट किए, एंड उसके बाद स्कॉलरशिप्स इन लोगों ने देना स्टार्ट किया, सो दैट कि बच्चों को मोटिवेशन मिले हायर स्टडीज के लिए. दैट इज द मेन थिंग दैट व्हाई दिस गेट एग्जाम वाज स्टार्टेड. एंड लेटेस्ट स्टेजेस पे आफ्टर दिस 2010 और 8 और 9, 10th, PSUs also started the recruitment through this GATE exam, and then later this IIMs also enter over there. Then other some government institutes, government bodies like PSPCL, Haryana Utility, they also started the recruitment of their subdivision engineer through this GATE exam. So this was nowadays what is going on. लेकिन otherwise किस चीज के लिए स्टार्ट हुआ था, दैट वाज टू प्रमोट द हायर स्टडीज. क्यों? क्योंकि दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, वो कंट्री का रिक्वायरमेंट था, टेक्नोलॉजी को यहीं पे बनाना है, वी रिक्वायर्ड टू डेवलप द टेक्नोलॉजी हियर ओनली, दैट वाज द नीड ऑफ दैट. सो दैट इज व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड, एंड दिस वाज द बेसिकली द गेट एग्जाम. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द गेट एग्जाम, इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ऑल, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. इन गेट एग्जाम देयर आर 65 क्वेश्चंस आर देयर. 100 नंबर का ये एग्जाम होता है, 3 घंटे का ये एग्जाम होता है, जिसमें आपके पास 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चंस आता है, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस आता है, मल्टीपल न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आता है. 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चंस आर देयर. देन देयर आर दिस मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन होगा, ऑप्शंस होगा, मोर देन 1 आंसर उसका राइट होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, और आपका दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा. 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा. दिस इज द बेसिकली द एग्जाम स्ट्रक्चर ऑफ द गेट एग्जाम. डिफरेंट ब्रांचेस के स्टूडेंट्स यहाँ पे है. गेट एग्जाम इज ऑफ 100 मार्क्स. आउट ऑफ दोज 100 मार्क्स 70 मार्क्स आर फिक्स्ड फॉर द टेक्निकल पार्ट, your branch specific. If you're from mechanical, 70 marks will be from the mechanical, and out of after that 15 marks will be from the engineering mathematics जो आप लोग पढ़ते हैं, M1, M2, M3 जो आप लोग पढ़ते हैं, and the 15 marks are from the quantitative aptitude, reasoning and English. So ऐसे आपका 100 marks का complete होता है. 70 technical, 15 engineering mathematics and 15 is the quantitative aptitude, reasoning and English. ये इसका एग्जाम स्ट्रक्चर है. 1 मार्क है उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.33 होता है, जो 2 मार्क है उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.66 का होता है. सो दिस इज द एग्जाम स्ट्रक्चर ऑफ दिस गेट एग्जाम. नाउ so many means you can say that the why you should write the gate exam, और गेट एग्जाम के क्या क्या इसकी बेनिफिट्स हैं. सबसे पहली चीज, स्टूडेंट whosoever is here from 3rd year, now earlier what was there, 3-4 साल के पहले क्या होता था कि आप सिर्फ फाइनल ईयर ऑनवर्ड ही गेट का एग्जाम दे सकते थे. बट नाउ व्हाट दे हैव डन फ्रॉम द आई थिंक लास्ट 1 or 2 years, अगेन अर्लियर वैसे 2014 से पहले भी होता था कि आप 3rd ईयर से दे सकते थे, लेकिन उसका स्टूडेंट को ऐसे कोई डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हुआ. लेकिन when the number of students appearing in the gate started falling so much, then from the last 1 or 2 year they have also again started that a student can write the gate exam in 3rd year onwards. From 3rd year onwards you can write the gate exam. Why you write the gate in the 3rd year, what are the benefits, everything, each and everything I am going to cover here. So student can write the gate exam 3rd year onwards. There is not any age limit to write the gate exam. Why? Because gate is meant for the higher studies. There is not any age limit to do the higher studies anywhere in the world.
you will never ever find any age limit to do the higher studies. You can do PhD at the age of 60, you can do masters at the age of, let us suppose, 40, 45, you can do at any stage. And GATE exam is fixed. Every year it happened on the first 2 weekends of the February. ये फिक्स है, हर साल फरवरी के पहले जो 2 वीकेंड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं फॉर गेट एग्जाम. बाकी सारी दुनिया इधर के उधर हो जाएगी, लेकिन ये गेट एग्जाम फ्रॉम लास्ट 20, 25, 30 इयर्स ये इसी डेट पे हो रहा है. फरवरी के फर्स्ट 2 वीकेंड्स इज फिक्स फॉर द गेट एग्जाम. 30% टेक्निकल, 70% टेक्निकल, 30% आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड वंस यू क्वालिफाई गेट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एट सो मेनी प्लेसेस. वो मैं एक एक करके सारे कवर करूंगा. नक्शे में वैसे मैंने लिखा है यहाँ पे. अच्छा, दिस कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. फिजिकल कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन द गेट एग्जाम. वर्चुअल कैलकुलेटर इज अलाउड. उसका ऐप भी आता है iOS पे, आपको ऐप स्टोर पे उसका ऐप भी मिल जाएगा, वहां पे आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर द दिस गेट एग्जाम में जो कैलकुलेटर आता है, वर्चुअल कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर. नेक्स्ट इज गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 years. when you start applying through the GATE exam, GATE score के बेस पे जो आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो when you write the GATE in the 3rd year, you cannot use that GATE score immediately. Like when you in the 6th semester, जब आप 6th semester में होंगे तो आप GATE का एग्जाम लिख सकते हैं, but you cannot use that immediately. If you want to use that 3rd year GATE score, you can use that in the 8th semester. Although in the 8th semester you can again write the GATE exam. Why you write in the 6th? Why you write in the 8th? What will be the benefit of writing 3rd year, final year? Which GATE exam you write? I am going to cover each and everything over here. Next is what will be the benefit of 3rd year, writing 3rd year? That is also I am going to cover. Second, next, last point is you can write 2 GATE exams. You can write 2 GATE exam in your branch, और इसके अलावा एक और ब्रांच उसके साथ आप ऑप्शन के साथ you can write the GATE exam. वो क्या क्या ऑप्शंस है, that is also I am going to cover. लास्ट में स्लाइड के अंदर है कि आपके पास सेकंड गेट पेपर क्या लिख सकते हैं. सेकंड थिंग इज दैट व्हाई आई राइट द 2 गेट एग्जाम. मैं 2 गेट के एग्जाम क्यों लिखूं, दैट इज आल्सो आई एम गोइंग टू कवर हियर. राइट, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के साथ देना है तो क्यों देना है, प्रोडक्शन के साथ देना है तो क्यों देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ देना है तो क्यों देना है, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर आर फ्रॉम फाइनल ईयर या 3rd ईयर से? कौन लोग हैं 3rd ईयर फाइनल ईयर से? कौन करवा रहा है इस बार आईसी अपना एग्जाम? इस बार एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है गेट का? आईसी बेंगलोर. एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, एक न्यू गेट पेपर ऐड हुआ है इस बार. कौन सा है वो? डेटा साइंस एंड एआई का न्यू गेट पेपर है स्टार्टेड दिस ईयर. गेट इन डेटा साइंस एंड एआई. क्यों डेटा साइंस और एआई से देना है, किसको उस एग्जाम से देना चाहिए, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू कवर दैट. Next, why you write the GATE exam? I think I have already covered all these options. Why you write through this GATE exam? If you want to go into the PSUs, public sector. PSUs क्या होते हैं भाई? What do you mean public sector? PSUs. महारत्ना, मिनी रत्ना, ये तो कैटेगरीज हो गई. कोई एग्जांपल PSU? BSNL, yes. NHPC, NTPC, IOCL, SAIL, GAIL, ISRO, BARC, DMRC. 250 plus PSUs list are there. And 3 categories में डिवाइड है. महारत्नास वो किस बेस पे डिवाइड है? महारत्ना उसका एक लिमिट के बियॉन्ड टर्नओवर है, दैट इज महारत्नास. कुछ कैटेगरीज में बता देता हूं कौन से PSU महारत्ना में है. लाइक सेल इज देयर, ONGC इज देयर, IOCL इज देयर, HPCL इज देयर. ये महारत्नास की कैटेगरीज में है. नवरत्नास जो न्यूली ओपन है, महारत्नास जिनका जो टर्नओवर है महारत्ना से नीचे, दैट इज द मिनी रत्नास. राइट, सो यू कैन एंटर इनटू द पब्लिक सेक्टर. So is public sector a government job? Is public sector job is a government job? देखो पहली चीज है, हम इसको ये नहीं बोल सकते कि अगर गवर्नमेंट जॉब मेरे को क्यों ज्वाइन करनी है सर, जॉब सिक्योरिटी होती है. तो अगर मैं बोलूं पब्लिक सेक्टर क्यों ज्वाइन करना है सर, हाफ गवर्नमेंट है तो हाफ सिक्योरिटी होती है, ये हम नहीं बोल सकते. इट इज नॉट ए गवर्नमेंट जॉब. पब्लिक सेक्टर होते क्या है कि ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी प्राइवेट के साथ, या 2 महारत्नास मिलके भी एक न्यू नवरत्ना क्रिएट कर सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल HRRL, BARC की बहुत सब्सिडरीज हैं, वो सारी नवरत्नास की कैटेगरीज में आती हैं. सो ये PSUs हैं बेसिकली पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में है, डिटेल में लिखा हुआ. ऑल्दो यू कैन एंटर इफ एनीवन ऑफ यू इज लुकिंग फॉर द जॉब इमीडिएटली आफ्टर द बीटेक, वो कौन कौन सी ऑप्शन आपके पास होगा? पब्लिक सेक्टर का ऑप्शन ओपन होगा और आपके पास आपका गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी है, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू कवर. सेकंड, फॉर हायर स्टडीज, इफ यू वांट टू गो इनटू द हायर स्टडीज आफ्टर द योर बीटेक, India or abroad, you can also enter through this GATE exam.
Next, if you want to make yourself a specialized person in any particular domain, like if you are from mechanical engineer, sir, I am having very much interest in the automobile. Sir, which domain should I choose? Sir, I am having very much interest in the coding part, designing part. Sir, I want to do. I am having a mixed interest related to the mechanical and electronics. Sir, which domain I should go? Means this is a specialized domain. If any one of you want to enter into any specialized domain, then higher studies is the option for you. You can do this thing through this GATE exam only. Next is, yes, obviously, overall, when you write the GATE exam, when you prepare for the GATE exam, overall your technical knowledge automatically gets increased. GATE exam क्या चीज है? GATE exam is not a difficult exam. पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ. Because जब भी हम GATE exam की बात वर्ड सुनते हैं ना, GATE exam, oh sir, it's very difficult exam. It is not at all a difficult exam. It is basically a conceptual exam. Full form क्या है? Graduate Aptitude Test in Engineering. ये एक बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है. ये रट्टे वाला एग्जाम नहीं है, ये क्रैमिंग वाला एग्जाम नहीं है, ये समझ वाला एग्जाम है. 3 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए दे रहा है ऑन एन एवरेज. 65 क्वेश्चंस, 180 मिनट्स, रफली ऑन एन एवरेज 3 मिनट्स यू आर गेटिंग. कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है. जिसको कंसेप्ट पता है वो उसका आंसर दे सकता है, अदरवाइज नहीं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रिवेट एंड वेल्डेड जॉइंट पढ़ते हैं कि अगर 2 रिवेट सीरीज में लगी है या पैरेलल में लगा है, जिगजैग रखना है, किस केस में जो रेजिस्टिंग एरिया है वो डबल होगा या हाफ होगा या ट्रिपल होगा. जिसको ये कंसेप्ट पता है वो उसका आंसर बहुत इजीली सही होगा. और सबसे बड़ा ब्यूटी पता है क्या होता है? जो क्वेश्चन वहां पे आएंगे, जो भी आप रॉन्ग आंसर निकालोगे ना, वो ऑप्शन वहां पे होगा. ये सबसे बड़ा ब्यूटी है. जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं गेट एग्जाम के अंदर, कि आपको 4 ऑप्शन वहां पे दिखेगी, एक सही है और एक ऑप्शन उसमें से वैसा होगा कि जब आप गलत उसको अटेम्प्ट करेंगे ना, और वो आंसर वहां पे आएगा और आप उसको टिक कर दोगे. तो मतलब कंसेप्चुअली यू शुड बी कंसेप्चुअली साउंड. एंड इफ यू क्वालिफाई गेट, दैट इज, यू कैन से दैट इज अ प्रूफ, आई विल से दैट कि योर टेक्निकल नॉलेज इज गुड. अदरवाइज मेयरली अ बीटेक सर्टिफिकेट, CGP on that is 9, 8, 7, मतलब हम इसको वो बोल नहीं सकते कि यार ठीक है तुम्हारा टेक्निकली यू आर गुड. ठीक है, CGP है, उसका एक प्रोसीजर है लाने का, लेकिन तुम टेक्निकली तुम्हारा कितना नॉलेज है, कंसेप्चुअली तुम कितने अच्छे हो, ये उस चीज का प्रूफ है. एंड गेट इज द ओनली एग्जाम जिसको आप पूरी लाइफ के लिए अपने रिज्यूमे के ऊपर लिख सकते हैं. दिस इज द अनदर ब्यूटी ऑफ दिस गेट एग्जाम, कि जिसके स्कोर को आप एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ यू कैन राइट ऑन योर रिज्यूमे, क्योंकि ये इस चीज का प्रूफ है दैट यू आर गेट क्वालिफाइड एंड योर टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड टू योर ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, is good. You are having that technical knowledge, you are having that temperament for that, a good temperament for that technical knowledge. So overall your knowledge gets automatically increased, conceptually you get sound. कुछ PSUs के नाम, like recently this HAL, nowadays HAL interviews are going on, Hindustan Aeronautical interviews are going on, ISRO, DRDO. आपके बैंक्स क्या होते हैं? पंजाब नेशनल बैंक, SBI, J&K बैंक, ये सब PSUs है. ये सब PSU की कैटेगरी है. और जो पब्लिक सेक्टर की जो सैलरी पैकेजेस है, दैट आर मोर देन द गवर्नमेंट जॉब. 7 पे कमीशन से भी ज्यादा होते हैं. ऑल्दो कि इसमें कैटेगरीज हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, उनके अपने पे स्केल्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं. और अगर हम जॉब सिक्योरिटी या अदर बेनिफिट्स की बात करें, डेफिनेटली वो कंपैरेटिवली गवर्नमेंट जॉब के ज्यादा होते हैं, पब्लिक सेक्टर. दैट इज द रीजन वाई कि जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु राइट दिस गेट एग्जाम, उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है पब्लिक सेक्टर में जाना, क्योंकि सैलरी पैकेजेस अच्छे होते हैं, बेनिफिट्स अच्छे होते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बन जाता है. तो दैट इज द रीजन व्हाई majority of the people who is writing GATE exam want to enter into the PSUs. But I will never recommend to go for the job immediately after the BTech. I'm going to tell you why I'm just telling this thing, that immediately BTech के बाद जॉब के बारे में नहीं सोचना है, कुछ और चीजें करनी है. क्या करनी है वो मैं आपको बताऊंगा. राइट, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब में पंजाब में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, PSBCL, वो जो सब डिवीजन इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट है वो गेट के थ्रू लेते हैं. हरियाणा यूटिलिटी जो डिपार्टमेंट है, ओडिशा का, वेस्ट बंगाल का, ये भी गेट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करते हैं फॉर दिस योर इलेक्ट्रिकल. मेजोरिटी ऑफ दी उसमें जो रिक्रूटमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल का या सिविल ब्रांच के लिए होता है. राइट, ये कुछ मैंने आपको PSUs के नाम बता दिए. देयर आर सो मेनी लैब्स अवेलेबल इन द कंट्री. बहुत सारी लैब्स अवेलेबल है, लाइक CSIO, CDEC, CSIR, बहुत सारी NILIT वगैरह, बहुत लैब्स होती हैं.
इन लैब्स में क्या होता है, टोटली रिसर्च के ऊपर होती है, टोटली रिसर्च। अच्छा, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आज के टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें बहुत ज्यादा, ये जो आजकल गाड़ियां आ रही हैं इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होती है, बहुत फास्ट पेस पे, बहुत ज्यादा R&D के ऊपर काम हो रहा है। इतने कम अमाउंट के ऊपर हमने चंद्रयान-3 हमने भेज दिया है बाकी कंट्री से कम मेरे को लग रहा है 1/3 या 1/4 प्राइस के ऊपर। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब हम रिसर्च वर्ड यूज करते हैं, व्हाट दिस रिसर्च इज ऑल अबाउट। थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, R&D डिपार्टमेंट होता क्या है। मैं आप लोगों को ये स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है कि रिसर्च जो होती है, जो रिसर्च हम वर्ड यूज करते हैं, वो कहां पे होती है? इंडस्ट्रीज में होती है? ज्यादा रिसर्च इंडस्ट्रीज में होती है या कॉलेजेस में होती है, यूनिवर्सिटीज में होती है? यूनिवर्सिटीज में होती है। फॉर एग्जाम्पल IITs, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग डोमेन में कौन से? IITs आर देयर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन NITs आर देयर, IIITs आर देयर। मैनेजमेंट के लिए टॉप इंस्टीट्यूट कौन से इंडिया के? IIMs आर देयर, मेडिकल के लिए एम्स आर देयर, दीज आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स। देखो, लेट अस सपोज आपका इंडस्ट्री है, आपके पास एक कंपनी है, आपका वहां पे प्रोडक्शन काम चल रहा है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आया वहां पे कि सर जब मैं इस पाइप को बेंड कर रहा हूं ना तो इसमें रिंकल नहीं पड़ने चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की, राइट? आई थिंक ये प्रॉब्लम हर कोई समझ लेगा, कोई भी ब्रांच क्या चाहे, यहाँ पे मैकेनिकल है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक पाइप बेंडिंग मशीन है, एक पाइप मशीन बेंड कर रही है, उसके जो इनर सरफेस के ऊपर ना उसमें रिंकल्स आ रहे हैं, सर ये नहीं चाहिए, ये इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम है। आजकल ई व्हीकल्स का बहुत ज्यादा चल रहा है, कोई भी एक गाड़ी जो है वो रफली 250 270 वन गो में जो चार्जिंग का वन में होती है वो इतना रन कर रही है। ये एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है कि इसको इंक्रीज करना है, चाहे वो बैटरी की फॉर्म में करें, चाहे वो लॉसेस को कम करके करें, ये इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स हैं। ये इंडस्ट्रीज में तो क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका सोल्यूशन कौन करेगा? इंडस्ट्रीज में रिसर्च फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल होती हैं। रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जिसकी रिक्वायरमेंट है रिसर्च की, वो लोग कौन है? इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट तो है, वो अल्टीमेट एंड यूजर है कि जिसको रिक्वायरमेंट है रिसर्च की, लेकिन अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन देने वाले कौन है? उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि बेंडिंग के ऊपर को किसका ज्यादा एक्सपर्टीज होगा? एक इंडस्ट्री वाले पर्सन का नहीं होगा, क्योंकि शायद उसका जो स्पेशलाइज्ड होगा वो बीटेक एमटेक तक ही लिमिटेड होगा। लेकिन जब हम कॉलेजेस की बात करते हैं, प्रोफेसर्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, वहां पे उस डोमेन के स्पेशलाइज्ड पर्संस हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने उस पर्टिकुलर एक छोटी सी टॉपिक के ऊपर PhD किया हुआ है, पोस्ट डॉक किया हुआ है, डबल PhD की हुई है, इतने सारा पेपर लिखे हुए हैं उसके ऊपर, पता नहीं कितने बच्चों को उन्होंने गाइड किया हुआ है फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, फॉर PhD प्रोग्राम। रिसर्च, ये होती है रिसर्च। प्रॉब्लम इंडस्ट्री के पास सोल्यूशन देना है प्रोफेसर ने। अब इंडस्ट्री क्या देखेगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, वो देखेगी इसका स्पेशलाइज्ड पर्सन कौन है इस कंट्री के अंदर या इस वर्ल्ड के अंदर। आई एम द इंडस्ट्री, मेरे को इसको सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर है वो इससे डिससेटिस्फाइड हो रहा है एक हल्की सी प्रॉब्लम से। I want the solution for that. What that industry will do? He will look for that person who is doing that. उसको उसने ढूंढ लिया कि IIT कानपुर के अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्सन है, एक प्रोफेसर है जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बेंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। वो इंडस्ट्री उस प्रोफेसर को अप्रोच करेगी कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाहिए, ये पकड़ो 10 करोड़ रुपए, राइट? फंडिंग मिल गई प्रोफेसर को। अब क्या प्रोफेसर अकेला काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसको चाहिए टीम। टीम कौन है? वो आप लोग ही तो है, स्टूडेंट्स। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को सर मास्टर्स करना है, मेरे को उसमें भी एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, मेरे को सर PhD करनी है, मेरे को डिग्री चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को सर इससे जॉब लग जाएगा, मैं इसको आगे अपने रिज्यूमे में लिख सकता हूं, इसको मेरे को सर आगे बेनिफिट होगा, मेरा ब्रांडिंग होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। सो दिस इज बेसिकली नाउ सी कि इसमें बेनिफिट किसका हो रहा है? अल्टीमेटली हर किसी का बेनिफिट हो रहा है। इंडस्ट्री का भी बेनिफिट हो रहा है, स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो रहा है, प्रोफेसर का भी बेनिफिट हो रहा है, अल्टीमेटली इस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है इस कंट्री के लिए। तो देयर शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन व्हेन यू आर डूइंग हायर स्टडीज, या कुछ भी आप कभी भी आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो ना, तो हमेशा इस तरीके से सोच के चलना कि मेरे को इस तरीके से काम करना है कि मेरे को हर किसी का फायदा होना चाहिए। अपने फायदे के लिए यार हर कोई करता है, लेकिन हम जब हर किसी के बारे में सोच के चलते हैं ना, तभी ये इकोसिस्टम वैसा डेवलप हो पाएगा इस कंट्री में, और एक अच्छे लोग यहाँ पे डेवलप हो पाएंगे, अच्छे तरीके से चीजें चल पाएंगी जब हम हर किसी के बारे में सोचना लगेंगे। और ये इकोसिस्टम ऐसे ही चल रहा है, हर किसी का प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है। अब जो स्टूडेंट्स वहां पे PhD कर रहे हैं, अब मेरे को ये बताओ वो पढ़ रहे हैं वहां पे या जॉब कर रहे हैं? जो प्रोफेसर के अंडर जिसके पास 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है,
उसको रिक्वायरमेंट है, उसने 3-4 पीएचडी होल्डर्स ले लिए, पीएचडी स्कॉलर्स ले लिए, अब वो उसको फंडिंग नहीं दे रहा है उस स्टूडेंट को। ये क्या है, वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है कि अपनी अपनी पढ़ाई कर रहा है, वहां पे जॉब कर रहा है। सो पीएचडी इज अ जॉब। बहुत नेगेटिव फैला हुआ है पीएचडी के बारे में, बहुत नेगेटिव फैला हुआ है कि सर पीएचडी कर लेंगे सिर्फ टीचर का ही ऑप्शन रह जाएगा, नहीं, और हर किसी को करनी चाहिए, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मतलब दिमाग में लगता है कि सर मेरे को पीएचडी नहीं करनी, मेरे को जॉब करनी है, मेरे को पैसे की जरूरत है, यार वो पैसा देने को रेडी है। इंडिया के अंदर भी 35,000 80,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप आ गया अब तो पीएमआरएफ के अंदर। और अगर तुम ओवरसीज बात करोगे, वर्ल्ड वाइड बात करोगे, तो 3,000 4,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप दे रही है, प्रोफेसर दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज दे रही हैं। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी नहीं देता है, कंट्री नहीं दे रहा कोई भी पैसा, वो प्रोफेसर पैसा कौन दे रहा है, वो इंडस्ट्री दे रही है, जिसकी प्रॉब्लम है, जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, जिसके साथ प्रोफेसर के साथ मिलकर आप काम कर रहे हो। तो रिसर्च वाला सिस्टम इस तरीके से चल रहा है और बहुत प्रॉब्लम्स है इस टाइम पे। तो अब तो इतना ज्यादा ये पेस पकड़ चुका है रिसर्च विंग, खास करके इंडिया के अंदर, और बहुत जल्दी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ियों का हर कोई शौक रखता है कि गाड़ियों का ना अभी आजकल वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट 2 व्हीलर 4 व्हीलर बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड हो रहा है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, व्हाट इज द मेन रीजन? किसी को पता उसके लिए रीजन क्या है? किस चीज में लैग कर रहे हैं कि गाड़ी इतना उस पेस पे नहीं आ रहा है बाहर, जितना डिमांड है उतना नहीं वो फुलफिल कर पा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? यार बहुत फेमस है ये चीज तो, और इस टाइम ये पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, कहीं इंडिया की बात नहीं है ये। चिप सुनते हैं ना हम लोग वर्ड कि चिप नहीं बन रही है जी, चिप की मैन्युफैक्चरिंग वाला जो डिपार्टमेंट है, जो चिप का जो चिप इंडस्ट्रीज है वो इतना उस पेस पे नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। सुना ये टर्म तो सुना हो ना, बड़े बड़े सिंपल से वर्ड में यूज कर रहा हूं, ये जो टर्म्स यूज कर रहा हूं बड़े सिंपल से लैंग्वेज में। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग इस टाइम पे इतना ज्यादा रिक्वायर्ड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक छोटे छोटे आपके सॉरी एक 2 व्हीलर के अंदर तो चिप आ गया है, अब तो प्रोसेसर उसके अंदर भी आ गया। अब तो 4 व्हीलर तो चलो ठीक है, बड़ी गाड़ियां तो सारी ठीक है, लेकिन अब 2 व्हीलर्स के अंदर भी चिप आ गया। तो इस टाइम पे अब यही चीज इंडिया ने एज ए अपॉर्चुनिटी लिया कि यार ये तो पूरे दुनिया की रिक्वायरमेंट है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप लोग इस चीज में टच में रहते हैं कि इंडिया में इस चिप इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है एक कंट्री के लिए। यहां पे इंडिया की सप्लाई करने की रिक्वायरमेंट से मतलब नहीं है कि ठीक है चिप ज्यादा बन जाएगी तो जल्दी गाड़ियां मिल जाएगी, उतने टैक्सीज आ जाएंगे, इतने तक लिमिटेड नहीं है चीजें। ये बहुत लार्ज स्केल तक लिमिटेड है, वर्ल्ड लेवल तक लिमिटेड है कि अगर इंडिया में उस लेवल का चिप मैन्युफैक्चरिंग होना लग जाएगा तो हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसपे जीडीपी पे फर्क पड़ेगा। जीडीपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इतना समझते हैं चीजें आप? समझते नहीं समझते हो? ये बड़ा सिंपल सी चीज है ये। तो ये मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स लेके बता रहा हूं उस वे में जिसमें आपकी चीजें दिमाग में एंटर कर जाएं कि अच्छा ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। दिस इज द थिंग, राइट? आफ्टर दैट दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक फॉर हायर स्टडीज की जब हम बात करते हैं। व्हाट आर द वेरियस हायर स्टडीज ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द बीटेक ग्रेजुएट्स? 3 डोमेन्स अवेलेबल है इस टाइम पे। फर्स्ट वन इज योर एमटेक प्रोग्राम, जिसके बारे में सभी ने सुना होगा कि एमटेक इज ए 2 ईयर प्रोग्राम, 12,400 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है। ठीक है जी, ये स्कॉलरशिप का क्यों देने का पर्पस क्या है, इसके पीछे क्या लगता है आपको? स्टाइपेंड क्यों दे रही है गवर्नमेंट, क्यों स्टाइपेंड दे रही है? अगेन एक चीज मैंने बता ही दिया आपको कि प्रमोट तो करना ही है हमें हायर स्टडीज को। दूसरा, जिन बच्चों को ये लगता है कि सर बीटेक कर ली, बहुत पढ़ लिया, पैसा कमा लेते हैं, अब यार नहीं, रिक्वायरमेंट है। जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, आई डोंट थिंक कि 80 to 85% स्टूडेंट्स को नीड है इमीडिएट जॉब करने का। मैं 10-15% एक्सेप्शन लेके चल रहा हूं, मैं इमीडिएट जॉब करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? चलो पैसा एक रीजन है जो मैंने आपको बताया कि शायद नहीं रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर लेते हो ना तो घर वालों से कोई प्रेशर नहीं आएगा। 80 to 85% आई थिंक स्टूडेंट्स आर हियर। 10 to 50% स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जिनको रिक्वायरमेंट है इमीडिएट अपनी फैमिली को, या बहुत सारे उसके पीछे चलो रीजंस हैं, लेकिन 80 to 85 का रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाई हायर स्टडीज, व्हाट इज द नीड ऑफ हायर स्टडीज? एंड दिस टर्म इज नॉट ओनली लिमिटेड टू व्हाई हायर स्टडीज, फ्रॉम वेयर हायर स्टडीज, दैट ऑल्सो मैटर्स। कि आप अगर हायर स्टडीज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन करनी कहां से है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बिकॉज व्हेन वी डू द हायर स्टडीज की नीड क्या है? देखो हम यहां पे हैं, पंजाब की इस रीजन के अंदर है। आई थिंक यहां पे किस स्टेट से स्टूडेंट्स हैं? पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं,
हरियाणा से हैं यहाँ पे कोई लोग? यूपी से हैं, बिहार से हैं, वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न कंट्री, इधर ईस्टर्न साइड से भी है इंडिया के, हैं इस रीजन से भी है, मेरे को लग रहा है अदर कंट्री से भी हैं कुछ लोग यहाँ पे। यस यू आर हियर। अब आप लोग जनरली मेरे को इस चीज का आंसर करना, आप पंजाब के रीजन में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप अपना कल्चर यहां पे बता पा रहे हैं? अगर पंजाब के अदर रीजन्स के स्टूडेंट्स हैं, यहां पे अपने कल्चर की, बाकी कल्चर की बात हो रही होगी, डेफिनेटली बात हो रही होगी। लर्निंग किसका हो रहा है? हर किसी का लर्निंग हो रहा है, पंजाब के स्टूडेंट्स का भी हो रहा है, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट का भी हो रहा है, अदर कंट्री के स्टूडेंट्स का भी हो रहा है। तो हम ये यहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, एक्सपोजर। एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज है लाइफ में, यही एक ऐसी चीज है जिसके पीछे भागना, कि जिसको अपना लाइफ में कुछ अच्छा करना है ना, जितना तुम एक्सपोजर ले हो, चाहे वो वैसे ही तुम्हारा लर्निंग हो, चाहे सोशली तुम अपने आप को लर्न करना चाहते हो, एक्सपोजर एक ऐसी चीज है जो कभी तुम्हें मार नहीं खाने देगी। जितना हो सके हमें एक्सपोजर चाहिए। और एक्सपोजर कैसे मिलेगा? एक जगह पर रह के नहीं मिलेगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जा जाके मिलेगा। हमें अपना सिस्टम को, जहां पे हम रह रहे हैं, जैसे यहां पे 4 साल लगा लिए, 2 साल किसी ऐसी जगह पे जाके लगाओ जहां पे तुम्हें और भी ज्यादा एक्सपोजर मिले। यहां पे डिफरेंट माइंड्स के स्टूडेंट्स बैठे हैं। जब फॉर एग्जांपल हम आईआईटीज की बात करेंगे, वहां पे डिफरेंट माइंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं। एनआईटीज की बात करेंगे, वहां पे डिफरेंट माइंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं। सो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द हायर स्टडीज, सबसे पहली चीज जो मैं बता रहा हूं, दैट इज द एक्सपोजर व्हाट यू गेट व्हेन यू गो देयर। थापर में जाके करेंगे, कुछ और अलग तरीके का वहां पे एक्सपोजर मिलेगा। आईआईटीज में जाएंगे, कुछ अलग एक्सपोजर मिलेगा। फॉरेन जाएंगे तो उसमें कुछ और अलग तरीके का एक्सपोजर मिलेगा। तो एक्सपोजर इज द मेन थिंग, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज द ब्रांडिंग। सेकंड इज द ब्रांडिंग, कि व्हेन यू गो फॉर द हायर स्टडीज, now you are doing bachelor from this particular college, is a very good college, but up to the bachelor level. Now come to the masters level. When we talk about the masters level, जिसमें हम ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, आई एम फ्रॉम योरपीडिया। योरपीडिया हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसको जितना भी आईआईटीज में स्टूडेंट जा रहे हैं, आई एम प्राउडली सेइंग दिस थिंग, मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वो योरपीडिया से ही चैनलाइज होकर जा रहा है, जितना भी आईआईटीज में स्टूडेंट जा रहे हैं। नाउ इस योरपीडिया का वैल्यू शायद आपको नहीं पता है, लेकिन व्हेन वी गो इनटू द आईआईटीज, जब भी वहां पे मास्टर्स का स्टूडेंट घूम रहा होता है, हमें नहीं पता होता सर आप योरपीडिया से हैं। प्राउड मोमेंट कि जब आपको कोई रिकॉग्नाइज करने लग जाए, समझ रहे इस चीज को? नाउ व्हेन यू विल राइट समथिंग ऑन योर रिज्यूमे, सर आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस आईआईटी, सर आई एम द एलुमनी ऑफ दिस एनआईटी, आई हैव डन प्रोजेक्ट अंडर दिस प्रोफेसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आईआईटी, दिस इज द ब्रांडिंग। जब आपको लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे, जब आपको लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे, व्हेन यू गोइंग टू द आईआईटीज और एनआईटीज ना, आपको एक ईमेल आईडी मिलता है जिसके पीछे होता है @IITRPR, उस कॉलेज के नाम का, जो हमेशा आप लोगों के पास रहता है। यही तो ब्रांडिंग है, यही तो चीज है जो तुम अर्न करोगे, जिसके बेस पे तुम्हें रिकॉग्नाइज करेंगे लोग। अच्छा तुमने आईआईटी से ये किया है, मतलब उसका तुम्हें एक वैल्यू अलग मिलेगा। दैट इज द सेकंड थिंग व्हाई यू गो फॉर द हायर स्टडीज। First thing I told you, the exposure. Second thing, the branding. Third thing, what is the third thing? The specialization. क्योंकि बैचलर लेवल तक अभी तक हमारा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। When you enter into the higher studies domain, you are into some specialized domain. You do some master's program in some particular domain, like you do masters in, let us suppose if we talk about the electronics people, in semiconductor devices, in VLSI, in signal processing, in control system, in communication, ये आपका core domain. Non-core domain, you do masters in the data science, you do masters in the artificial intelligence, you do masters in the machine learning, you do masters in the, let us suppose, mathematics, you do masters in the management domain. These are the non-core domains. You do masters in the material science, you do masters in the environmental science. So many options are there. So you do masters in the aerospace department, you can do that. So this is a specialization, and this is the need of the country right now. अब कंट्री को बीटेक नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को बीटेक लेवल पे जब आप जॉब पे एंटर कर रहे हैं ना, आपको वो कोई स्पेशलाइज्ड वर्क नहीं दे रहे, स्पेशलाइज्ड वर्क आपको नहीं दे रहे। यू कैन गो फॉर दैट। मैं किसी को वो नहीं बोल रहा कि आप लोगों को जॉब नहीं लेनी चाहिए या उसके लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉट द माई केस फॉर दैट। बट अदरवाइज बैचलर लेवल पे वही सेम कंपनी आपको पैकेज दे रही है 3-5 लाख का, वही कंपनी मास्टर लेवल पे आपको पैकेज दे रही है 12-15 लाख का, वही कंपनी पीएचडी लेवल पे आपको जो पैकेज दे रही है वो 50-60 लाख का दे रही है।
दैट इज द मेन थिंग। क्यों दे रही है वो वही कंपनी, सेम कंपनी आपको इस कॉलेज में आ रही है, फिर आईआईटी में आ रही है, फिर पीएचडी के लिए आ रही है, फिर मास्टर्स के लिए आ रही है। क्यों इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है? दीज आर द 3 रीजंस। फर्स्ट वन इज द ब्रांडिंग, कहां से कर रहे हो। सेकंड वन इज द स्पेशलाइजेशन, दिस इज द रिक्वायरमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो अब बैचलर भी स्टार्ट हो गया है, बहुत कॉलेजेस ने बीटेक स्टार्ट कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। पता ही नहीं पता इसके लिए, बहुत कॉलेजेस ने। हायर स्टडीज में मास्टर्स लेवल पे तो हो ही रहा है। अच्छा, एक चीज और दिमाग में रखना, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं आईआईटी, एनआईटी और इन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। अब वहां पे आईआईटी के अंदर बहुत न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ई व्हीकल्स के ऊपर हो रहा है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ऊपर हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज की वहां पे स्टार्ट हो रही है। यू टेल मी, ये किसकी नीड है? ये आईआईटी की नीड है? ये आईआईटी का नीड है कि नया कोर्स स्टार्ट करना? नहीं। ये कंट्री का नीड है? नहीं, ये वर्ल्ड का नीड है। क्योंकि जो इंडियन इंजीनियर्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीट वर्ल्ड। तो अगर आईटी के अंदर कोई भी ऐसा कोई कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इट मींस कि दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, दैट इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। और यही चीज आप लोगों को सोचना है। हमें अपनी सोच को लिमिटेड नहीं रखना है, हमें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना है। जितना बड़ा सोचोगे उतना आपको बेनिफिट कर सोच उतना ज्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा, छोटा नहीं सोचना है। ये मैं शायद पिछली बार भी बात बोली थी, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने ये बात बोली है कि अ स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन। किसने बोली है बात? हाँ, स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन, किसने बोला ये? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। स्मॉल थिंकिंग इज ए सिन। उसने सिन वर्ड क्यों यूज किया उन्होंने? आपको क्या लगता है सिन वर्ड का मतलब क्या होता है? पाप। हम लोग इंडियंस बहुत रिलीजियस है ना, रिलीजन में बहुत विश्वास करते हैं, और ये जो पाप हम वर्ड है रिलीजन से यूज करते हैं, रिलीजन के लिए यूज करते हैं। किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, हम ये नहीं बोले तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बोलते हैं ऐसा, लेकिन रिलीजन के मामले में हम लोग पाप ये वर्ड यूज करते हैं। तो उन्होंने ये वर्ड इसलिए यूज किया कि यार अब तो समझ जाओ कि कितनी बड़ी चीज है अगर तुम छोटा सोच रहे हो। ऑलवेज थिंक बिग, बड़ा सोचो। जो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, जो गेट के बाद गाइडेंस के लिए यूरोपीडिया को स्टूडेंट्स आते हैं, वो क्लियरली बोलते हैं सर ऐसी जगह के लिए हमें गाइड करना, मेरे को 20-25 लाख का पैकेज चाहिए, मेरे को 15-20 लाख का चाहिए। सर एफर्ट करने के लिए मैं रेडी हूं, मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूं। इफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आईटीज के अंदर सीटें खाली पे रह जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं होते हैं अप्लाई करने के लिए। रीजन उसके पीछे, पहला सबसे बड़ा रीजन है पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि अच्छा ऐसा भी कोई कोर्स होता है। बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर, बीइंग एन सिविल इंजीनियर, बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मेरे को यही नहीं पता कि मेरे पास स्पेशलाइज्ड डोमेन्स क्या क्या है अप्लाई करने के लिए। कोई सिविल इंजीनियर में कोई यहां पे खड़ा होकर बता सकता है कि मेरे पास कहां क्या क्या स्पेशलाइज्ड ऑप्शंस हैं हायर स्टडीज में जब मैं अप्लाई कर रहा हूं? कोई बता सकते हैं मेरे को? बहुत लिमिटेड सी पता होगी। स्ट्रक्चर होती है, वाटर रिसोर्सेज, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, और हाँ जी कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, यस। और यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द डाटा साइंस, you can also into the AI, you can also into the rock engineering, you can also into the earthquake management, you can also enter into the this aerospace, you can also enter into the this space astronomy, you can also enter into the geoinformatics, you can also enter into the material science. Roughly you are having more than 50 specializations available, more than 50, और ये हर ब्रांच के लिए अवेलेबल है, पता ही नहीं है। दूसरा चीज, सर मेरा टेम्परामेंट इस डोमेन में, ये 50 में से आपने ये चेक करना है वेयर माई टेम्परामेंट इज लाइंग, यू शुड प्रोसीड योर करियर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। सिविल एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, मैकेनिकल इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। स्पेशलाइजेशन, अब वो मेरे को पता होना चाहिए विच ऑल दो स्पेशलाइजेशंस आर व्हाट इन माय पर्टिकुलर डोमेन, मेरे को वो पता होनी चाहिए। और ये स्पेशलाइजेशन दो कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज योर कोर डोमेन, सेकंड वन इज योर नॉन कोर डोमेन। नॉन कोर जिसमें कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, फॉर एग्जांपल डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई, एनवायरमेंटल साइंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है उसके लिए। सो हमें ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सो ऑलवेज गो फॉर द हायर स्टडीज। लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट जॉब्स और द पब्लिक सेक्टर जॉब्स
किसके लिए बनी है। मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं एक, अगर आप लोगों में से सिविल इंजीनियर बहुत लोग हैं यहाँ पे, हर कोई जेई और आपका सब डिवीजन इंजीनियर का या असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब देखता है अपनी स्टेट के लिए। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब किसके लिए नहीं बनी है, अदरवाइज बहुत लेटेस्ट स्टेज पे रिग्रेट होगा, शायद पता भी ना चले। जो अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस चाहता है, ठीक है, 50, 70, 80 लाख, 80,000 लाख रुपए आ रहे हैं मेरे को, ठीक है, कंफर्टेबल है, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी चाहता है, आराम चाहता है, गवर्नमेंट जॉब उनके लिए बनी है। लेकिन अगर कोई पैसा कमाना चाहता है, एक्सपोजर चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, कुछ करना चाहता है सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट मेड फॉर देम। आई एम क्लियरली टेलिंग यू दिस थिंग, except with some research organizations like ISRO, DRDO, DARC, इन तीन को एक साइड पे रख दो, because they are doing something for the society। बाकी अदरवाइज तो सर्विस सेक्टर है सारा, बाकी अदरवाइज सर्विस सेक्टर है सारा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ये दिमाग में बिठा लेना। स्पेशलाइजेशन जब तक नहीं आएगी, एक्सपोजर जब तक नहीं आएगा, ब्रांडिंग जब तक नहीं होगा, तुम्हारा वैल्यू मार्केट में नहीं डलेगा। इन तीन चीजों के पीछे भागना, पैसा अपने आप आ जाएगा। एंड टू अर्न मनी, जॉब करने के लिए पूरी लाइफ बनी है, लेकिन ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई, शायद ये टाइम दोबारा से आपको ना मिले। यू आर इन दैट फेज, आप उस मोमेंटम में हैं, आप उस फ्लो में हैं, इसी फ्लो में कर जाओ। टारगेट सेट करो कि सर मेरे को ये करना है, ये आप बोला, लिख लिया मैंने, मेरे को करना है, ये बताओ कैसे करना है। इस तरीके से आप अपने आप को सोचना स्टार्ट करो, बड़ा सोचना स्टार्ट करो, स्टार्ट थिंकिंग बिग। ओके, सो एमटेक इज ए 2-year प्रोग्राम, एमएस इज ए 3-year प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम जिसका भी सीजीपीए जनरल कैटेगरी इज अबव 7.5, गेट नियर क्वालिफाई। बहुत जगह पे आपको सुनने में मिलेगा कि सर अगर गेट में मेरा अच्छा ना हुआ तो, दैट इज वेयर योर पीडीएफ, जिसने रेवोल्यूशन लाया इस पूरी कंट्री के अंदर कि इफ यू आर नियर गेट क्वालिफाई, स्टिल यू कैन एंटर इनटू द आईआईटीज। एंड वी हैव सेंट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द वेरियस आईआईटीज, हर आईआईटी के अंदर योरपीडिया के स्टूडेंट्स हैं। सो एमएस इज ए प्रोग्राम, एमएस एंड डायरेक्ट पीएचडी इज ए प्रोग्राम वेयर योर सीजीपीए इज हैविंग अ रोल। इन द एमटेक प्रोग्राम a minimum 6 or 6.5 is required, and the final selection criteria is purely on the basis of your GATE score. But when we talk about the master's program, MS program, and the direct PhD program, which is a 5-year program, where the scholarship is 35,000 rupees per month. In PMRF, the scholarship is 70,000, 80,000 rupees per month. Here is the role of your CGPA. More you will be having the CGPA, near GATE qualify, write a very good statement of purpose. Write a very good statement of purpose. When you write a very good statement of purpose, when you apply over there, और उस अप्लाई करने के साथ में अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दे रहे हैं कि सर ये मेरा पर्पस है आपके अंडर अप्लाई करने का, एंड देन द प्रोफेसर विल रीड दैट पर्पस, उसको पता लगेगा अच्छा यार ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और इसने इस डोमेन में काम भी किया है, तो वो आपको यस बोलता है। तो एमएस प्रोग्राम डायरेक्ट पीएचडी में जो सिलेक्शंस हैं, दैट इज प्योरली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल, your purpose, why you want to do that. अगर आप suppose being a civil engineer, why you want to apply in the environment domain or aerospace domain, आपको एक अगर उसमें लिख दिया कि ये रीजन है सर, मैंने सर जब प्रोजेक्ट किया तो उसमें मैं ये काम कर रहा था, उसमें मैंने ये चीज किया देखा, और सर जब मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था आप भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसमें भी ये चीजें मैच कर रही है, सर मेरे को इस डोमेन में काम करना है फर्दर क्योंकि मेरा डोमेन और आपका डोमेन सिमिलर है, मेरे को इसके अंदर काम करना है आपके अंदर, वो आपको यस बोलेगा क्योंकि मैचिंग हो गया है। प्रोफेसर की नीड है, उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, ये चीज दिमाग में रखना। लेकिन वो आपको क्यों यस बोलेगा? अगर उसको लगेगा कि दिस इज द पर्सन कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को, इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क्स, एमएस प्रोग्राम एंड दिस डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। नाउ दीज वर द ऑप्शंस इन द हायर स्टडीज डोमेन, इन द टेक्निकल डोमेन। बट इफ यू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट डोमेन, there are so many students, there must be so many students who are targeting CAT exam. कितने लोग हैं जो CAT exam टारगेट कर रहे हो? है कोई यहां पे which is targeting CAT exam? अच्छा, मैनेजमेंट डोमेन में जाना चाहते हो आप लोगों में से कोई? There is a other way, again through the GATE exam you can enter into the management domain. All the IITs, all the NITs having the management courses. Last time जब मैं आया था, there was one name also was there, that was NITI Bombay. अब वो IIM बॉम्बे में कन्वर्ट हो गया, सो दैट लीव दैट थिंग अपार्ट। अब वहां पे जो रिक्रूटमेंट है वो कैट के थ्रू ही होगा एंट्री।
But if you talk about other IITs, NITs, like Department of Management Studies, IIT Madras, IUR, IIT Bombay, Masters of Management, IIC Bangalore, each and every IIT, each and every NIT is having the management domains. देखो मैं ये चीजें ऑप्शंस बता रहा हूं, इट डजंट मीन कि सिर्फ मैं ऑप्शन ही बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको वही ऑप्शंस बता रहा हूं वेयर यू विल गेट अ वेरी गुड करियर. पैसे की बात है वो तो है ही है यार, उसका तो कोई मतलब पॉइंट ही नहीं है रेज करने का कि सर अगर आईटी से मैनेजमेंट कोर्स करेंगे प्लेसमेंट कैसा होगा, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. आईटी में जा रहे हो, प्लेसमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है. पहला, तुम वहां पे जाके कैसा काम कर रहे हो. दूसरा, तुम वहां पे जाके अपने आप को प्लेसमेंट के लिए कितना प्रिपेयर कर रहे हो. आपको पता है कि यार ये कंपनीज यहां पे आती हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं करोगे, कौन आपको प्लेसमेंट देगा? नोबडी इज गोइंग टू गिव दैट. और ये चीज यहां पे भी एप्लीकेबल होगी. यहां पे कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, कुछ का सिलेक्शन हो जाता, कुछ का नहीं सिलेक्शन होता. किसका सिलेक्शन हो जाएगा? इट्स वेरी सिंपल कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को, जो उनकी नीड को, चाहे वो नॉलेज पार्ट पे हो, चाहे वो प्रोजेक्ट के पार्ट पे हो, किसी भी पार्ट पे हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, दे विल टेक दैट पर्सन, अदरवाइज बाकियों को वो नहीं लेगा. इट्स वेरी सिंपल. एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल एट द मास्टर्स लेवल. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल एट द मास्टर्स लेवल, एट द पीएचडी लेवल ऑल्सो. प्लेसमेंट इज इन योर हैंड. कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आपको उसके लिए बिठा सकता है, लेकिन प्लेसमेंट आपको खुद लेनी होती है. इंटरव्यूज जीडी जीटी होते हैं. इंटरव्यू एक आर्ट होता है. सर ने मेरे को बोला था कि इंटरव्यू के ऊपर भी बोलना. इंटरव्यू के ऊपर मैं बताऊंगा आपको. इंटरव्यू कुछ नहीं है, सिर्फ एक आर्ट है. उस आर्ट को करना प्रैक्टिस के साथ आ जाता है वो. एंड योरपीडी इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया which is preparing students for the interviews. Roughly in a year we mentor around 5,000 students for the interviews for various PSUs या higher studies या किसी भी डोमेन की बात करें, right? So options are MBA from IITs and IIC Bangalore, MBA from NITs, and this IIMs management course, management college IIM. You can also enter into the Indian Institute of Management through this GATE exam. And what is that program is known as? पिछली बार बताया था मैंने. What is that name? What is the name of that program? FPM program, Fellowship Program in Management. FPM program. You can also enter into the GATE, this management program after the GATE exam. Again, the scholarships are 25,000 to 35,000 rupees per month. जितना भी मैनेजमेंट, जितना भी रिसर्च प्रोग्राम होगा ना, जितने भी रिसर्च प्रोग्राम, MS प्रोग्राम इज a रिसर्च प्रोग्राम, डायरेक्ट PhD इज a प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम, FPM इज ऑल्सो रिसर्च प्रोग्राम. जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स वर्ल्ड वाइड होते हैं, सारे के सारे विद स्कॉलरशिप्स ही होते हैं. रीजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है. वी हैव टू डू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट. बड़ी सिंपल सी चीज है. फ्रॉम देयर दे आर गोइंग विद द फंडिंग, राइट? नाउ नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द फॉरेन स्टडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम भी मैंने एक वर्ड यूज किया था कि इफ यू आर टारगेटिंग अब्रॉड, first of all tell me, raise your hand, how many of you are targeting for abroad? Now my question changes something like, how many of you want to go abroad generally for studies or for the sake of doing, or for the sake of going only? Now this is the problem of this Punjab region कि चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, चाहे वो किसी भी डोमेन से है, they only want to go abroad, that's it. 20, 25, 30 लाख 50 लाख लगाने को रेडी है, मेहनत करने को रेडी नहीं है. देयर इज अ वे टू गो अब्रॉड. देयर इज अ वे टू गो अब्रॉड वेयर यू हैव टू स्पेंड ओनली 1.5-2 लाख रुपए. इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है. अपनी पेरेंट्स की हार्ड अर्नड मनी को वेस्ट नहीं करना है. लोन नहीं लेने का रिक्वायरमेंट है. देयर इज अ वे फॉर दैट. अगेन यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेसर. अगेन सेम थिंग which is applicable in India, that is also applicable worldwide. They are having the projects. You have to write a very good statement of purpose. You have to mail to the professor. But before that, you have to do some work for that. आपको उसकी प्रोफाइल चेक करनी है. जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी को, जो सी भी कंट्री में, आपको उसकी प्रोफाइल चेक करनी है. आपको देखना है वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जो वो किस टॉपिक के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है. उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना है. आपको एक मेल लिखना है उससे रिलेटेड, और आपको उसको सेंड करना है रफली मोर देन 100 प्रोफेसर्स. अब ऐसा नहीं होगा कि इफ यू हैव रिटन द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिलेटेड टू द जियोटेक एंड यू आर सेंडिंग दैट प्रोजेक्ट टू द डाटा साइंस पर्सन. नहीं होगा. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ. व्हेन यू आर टारगेटिंग अब्रॉड, रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है. रिवर्स इंजीनियरिंग में भी आपको बता के हटाऊं मैं, दैट यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट. You have to create
उसके दिमाग में ये चीज क्रिएट करनी है, आई एम द पर्सन जो तेरी हेल्प कर सकता है तेरे प्रोजेक्ट में, बड़े सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको बोल रहा हूं मैं। और दिस इज द वे वी आर सेंडिंग स्टूडेंट्स अब्रॉड। टॉप यूनिवर्सिटीज टारगेट करो, वर्ल्ड की टॉप 20 यूनिवर्सिटी टारगेट करो, वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटी। इससे कम सोचो ही मत, अगेन छोटा मत सोचो, टारगेट बिग। और ये बहुत इजी है, जितना मैं कॉन्फिडेंटली और जितना मैं प्राउडली बोल रहा हूं ये चीजें, उतना ही इजी है। लेकिन क्या इजी नहीं है कि हार्ड वर्क और रिप्लेसमेंट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा लगेगा, पेशेंस रखनी पड़ती है उसके लिए थोड़ी सी, लेकिन हो जाता है ये। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी लीडर, राइट? So through the GATE exam, you can also enter into the foreign universities. There are 5 universities who is intaking for the master's program. कौन सी है वो 5 यूनिवर्सिटी मेरे को बता सकते हो जो गेट के थ्रू करते हैं एंट्री मास्टर्स प्रोग्राम के लिए पीएचडी? फर्स्ट वन इज, या पिछले बार बताया था मैंने, विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो गेट के थ्रू लेते हैं मास्टर्स प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम? नेशनल, चलो हिंट देते हैं, सिंगापुर की है 2 यूनिवर्सिटीज तो, एनयूएस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, दूसरी कौन सी है? ननियान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। मैं जितने भी वर्ड्स यहां पे बोल रहा हूं ना, जितने भी यूनिवर्सिटी या जितने भी बात कर रहा हूं, दोज आर द टॉप इन द वर्ल्ड, या जिसके थ्रू तुम्हें करियर मिलेगा। विच इज द थर्ड वन? RWTH। विच इज द फोर्थ वन? टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। विच इज द फिफ्थ वन? क्रैनफील्ड, यूके। 5 यूनिवर्सिटीज हैं ये जो गेट के थ्रू लेते हैं, राइट? सो दीज आर द फॉरेन ऑप्शंस अवेलेबल थ्रू अ सिंगल एग्जाम, दैट इज अगेन द गेट एग्जाम। फॉरेन के लिए मैं एक बड़ी सिंपल सी बात यूज कर रहा हूं, यू ऑल आर द टेक्नोक्रेट्स, यू ऑल आर द टेक्नोक्रेट्स। जो भी फॉरेन के लिए टारगेट कर रहे हो, गो देयर एज अ टेक्नोक्रेट, डोंट गो देयर एज अ लेबरर। एक लेबरर के तौर पे मत जाओ, एक टेक्नोक्रेट के तौर पे जाओ, और जाना बहुत ईजी है। और अगर बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्चना है, मास्टर्स में आपको स्कॉलरशिप कंपैरेटिवली कम होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज मास्टर्स प्रोग्राम छोटा प्रोग्राम होता है, रिसर्च का इतना ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होता है, दैट इज द रीजन मास्टर्स में स्कॉलरशिप कम होती है। बट इन दिस यूरोप साइड, एट सम कंट्रीज, इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इज टोटली फ्री। कोई फीस नहीं है एजुकेशन का, आपको रहने खाने पीने का ही खर्चा करना है वहां पे। अदरवाइज व्हाट इज द सेकंड वे, व्हाट इज द इजीएस्ट वे एंड व्हाट इज द बेस्ट वे? इंडिया से बीटेक कर लिया, डू मास्टर्स फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस लाइक IITs, NITs, अपना प्रोफाइल अच्छा करो एंड गो फॉर द PhD अब्रॉड, बिकॉज PhDs आर इन एक्चुअल जॉब। और वर्ल्ड वाइड फंडेड प्रोग्राम्स हैं, 3000 से 4000 $US पर मंथ स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, जिसमें आपका 50% खर्चा है, 50% सेविंग है। सो इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, यू कैन टारगेट दिस थिंग। Do masters from India, from top colleges, and it is not only related to the top colleges. कहीं से भी कर सकते हो मास्टर्स इंडिया से, but you have to maintain your profile good. आपको अपना CGPA अच्छा रखना है, आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क अच्छा करना है, जो मास्टर्स में होगा। Then again statement purpose, cover letters, mailing to the professor. Next step, they will respond and they will intake you. और जिसमें IELTS, GRE, TOEFL कोई एग्जाम का रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोफेसर के हाथ में होता है सब कुछ, वो सब कुछ वेव ऑफ कर देता है, कोई एग्जाम का रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स वी हैव सेंड ओवर देयर, और हर स्टूडेंट का जिसका सिलेक्शन होता है, वी डू द इंटरेक्शन विद देम एंड वी पुट ऑन द यूट्यूब। जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था ना, योरपीडिया ग्लोबल, दैट इज बेसिकली द थर्ड पिलर ऑफ योरपीडिया, जो फॉरेन एडमिशंस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें बहुत इंटरेक्शंस पड़ी हैं, पंजाब से पता नहीं कितने स्टूडेंट को हम लोग भेज चुके हैं। और जो हमारे मेंटर हैं स्पेशली फॉर द PhD प्रोग्राम, राहुल शर्मा, ही हैज डन हिज बीटेक फ्रॉम दिस रियात एंड बारा कॉलेज रोपड़ कैंपस, देन मास्टर्स फ्रॉम IIT कानपुर, एंड नाउ डूइंग PhD फ्रॉम रटगर्स यूनिवर्सिटी दिस USA, एंड आई थिंक इट इज द 15th और 16th रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। यू कैन चेक दैट, न्यूयॉर्क में है ये, एंड यू कैन इजीली गो देयर। मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा उनके साथ। अभी जो आप लोगों को हमने कॉन्टेक्ट नंबर लिए ना, व्हाट इज द पर्पस फॉर दैट? आई एम गोइंग टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दैट, और वहां पे आपको सारे ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, वो जैसे जैसे ये अपॉर्चुनिटीज आता रहेगा, आई एम गोइंग टू फीड यू फॉर दैट। वहां पे सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे को आप लोगों को बतानी है। और इट इज नॉट दैट कि आपको सिर्फ आप ही उस कॉलेज के स्टूडेंट है उसके अंदर, उसमें पंजाब के जितने भी कॉलेजेस में हम लोग जा रहे हैं, उसमें सभी वो कॉलेज के स्टूडेंट है। अगेन द एक्सपोजर, उसमें जब आपका लर्निंग होगा कि बाकी कॉलेज का स्टूडेंट क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, तो वहां से आपका लर्निंग और ज्यादा स्ट्रांग होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। अपना करियर इस तरीके से सोचना,
जॉब करने की जल्दी मत करना इन एनी केस, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, जल्दी मत करना। 3 चीजें मैंने आपको बता दी है, ब्रांडिंग, एक्सपोजर और स्पेशलाइजेशन। ये 3 चीजें ऐसी होंगी जो आपको आपका करियर बहुत स्ट्रांग करेगी, बहुत अच्छा करियर तुम्हारा बनेगा इससे। नाउ क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन है अब यहां पे, शुड आई राइट द 2 गेट एग्जाम्स और शुड आई राइट गेट इन द 3rd ईयर। बड़ा सिंपल सा है, इसको और कंक्लूड करता हूं मैं। इसके नेक्स्ट जो आएगी ऑप्शन हायर स्टडीज मैंने कवर कर दिया। दिस इज द मेन थिंग, इज इट विजिबल टू ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने बात की थी ना, टू राइट द 2 गेट एग्जाम्स, राइट। सो दिस इज द मैकेनिकल, सॉरी दिस इज द सिविल। सो फॉर द सिविल ब्रांच यू कैन राइट सिविल एज ए फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर यू कैन राइट आउट ऑफ दीज एनी वन, इनमें से कोई भी एक में आप कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद आपका एरोनॉटिकल हो गया, एनवायरमेंट, नॉर्मली जो स्टूडेंट लिखता है सिविल का वो लिखता है एनवायरमेंटल साइंस के साथ, जियो इंफॉर्मेटिक्स के साथ, उसके बाद एक्सी के साथ भी लिखते हैं मेजॉरिटी, राइट। जो नया गेट पेपर स्टार्ट हुआ है दैट इज द डीए, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीए कंप्यूटर साइंस, मतलब अगर आप डीए से फर्स्ट पेपर देना चाहते हो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर योर सिविल ब्रांच, नॉट फॉर मैकेनिकल, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये ध्यान से समझना ये चीज, ये बहुत डाउट आता है इस चीज का दिमाग में। सिविल के लिए मैंने बता दी सेकंड पेपर, इफ यू आर राइटिंग सिविल एज ए फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर इनमें से आप कोई लिख सकते हैं, राइट। नाउ मैकेनिकल, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से फर्स्ट पेपर दे रहे हैं, सेकंड पेपर आप कंप्यूटर साइंस से दे सकते हैं, डाटा साइंस से दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से और फिजिक्स से, इससे आप सेकंड पेपर दे सकते हैं। नाउ थर्ड मैकेनिकल, अगेन एरोनॉटिकल, डाटा साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, NM is I think naval and architecture, I think this is NM code, production and XC, right। now अब दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर मैकेनिकल में भी डाटा साइंस लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डाटा साइंस लिख दिया, सिविल में तो डाटा साइंस लिखा नहीं, तो क्या मैं डाटा साइंस से पेपर नहीं दे सकता? ये पूरे इंडिया का क्वेश्चन है इस टाइम पे कि मेरा सर कुछ ब्रांचेस डाटा साइंस के आगे लिखा ही नहीं है। यस यू कैन राइट, कि जिसके भी आगे ब्रांच में उसने डाटा साइंस का पेपर नहीं लिखा है तो क्या मैं उसमें नहीं लिख सकते हो, बट यू कैन राइट एज अ फर्स्ट पेपर, राइट। मैं डाटा साइंस से पेपर देना चाहता हूं, मेरे को सिविल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्या मैं लिख सकता हूं? यस, राइट विद द फर्स्ट पेपर। सर मेरे को सिविल से भी पेपर देना और डाटा साइंस से भी देना, 2 पेपर लिख सकता हूं? नहीं, राइट। क्योंकि जब आप डाटा साइंस फर्स्ट पेपर एक्सेप्ट करोगे उसमें सेकंड में सिविल का ऑप्शन नहीं है। Now first of all let me tell you that why this data science and AI paper started. Again this is the need of the world. इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा रिसर्च चल रहा है, सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, that is in this domain only, that is the data science and AI, right? कुछ पता है डाटा साइंस और AI के बारे में? किसी ने यूज किया यहाँ पे कोडिंग वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल या मैकेनिकल अपने प्रोजेक्ट में कुछ कोड वगैरह यूज किया आपने, पाइथन वगैरह या फिर कुछ लैंग्वेज कुछ यूज किया आप लोगों ने? किसी ने किया? नहीं किया? करना स्टार्ट कर दो, करना स्टार्ट कर दो। रीजन भी मैं उसके पीछे आपको बता रहा हूं, एंड इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल भी। पहला चीज, आज के टाइम पे कोई भी ब्रांच कोर नहीं रहा है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मतलब इफ यू टॉक अबाउट द रिसर्च डोमेन, अगर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो अब रिसर्च उस तरीके से नहीं होती है। एक कार को हम बोलते थे कि टोटली एक मैकेनिकल का डिवाइस है, मैकेनिकल का एक इनोवेशन है, मैकेनिकल के लिए सिर्फ, बट अब तो कार वो रही नहीं है मैकेनिकल। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द मैकेनिकल, उसमें कंप्यूटर साइंस भी आ गया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, उसमें चलो मैकेनिकल तो है ही है, उसमें इलेक्ट्रिकल भी है। अब ये सारा का सारा मिक्स हो गया है, सब मिक्स हो गया अब सारा। तो दैट इज द रीजन वाई हमें उस डोमेन में टाइम के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जब आप यहां पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसमें जो आप डेटा आपको आता है, उस प्रोजेक्ट के एंड में जो आपको डेटा आ रहा है, अब उसका एनालिसिस जो करना है वो डेटा साइंस के थ्रू करना है। अब उसका अगला स्टेप क्या है कि वो जो डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया, इसका आउटकम प्रोडक्ट जो बना रहा है वो एआई है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे पास 1.5 लाख स्टूडेंट का डाटा है, लेकिन मेरे को नहीं पता उसको यूज कैसे करना है। लेकिन मैं अगर एक डाटा एनालिस्ट को बिठा दूंगा, एक मशीन लर्निंग स्पेशलाइज्ड पर्सन को बिठा दूंगा और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सन को बिठा दूंगा और मैं उसको डाटा दे दूंगा और मैं उसको अपना मॉड्यूल बता दूंगा, अपना सारा सिस्टम बता दूंगा, डेफिनेटली वो किसी ना किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में, जिससे योरपीडिया का प्रोडक्टिविटी या ईसीपी का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर वर्क्ड। चैट जीपीटी के बारे में सभी ने सुना है? कैसे काम कर रहा है? वो खुद लिख रहा है? नहीं यार, वो तो जितना इंटरनेट के ऊपर डाटा पड़ा है उसके बेसिस के ऊपर ही आपको एक कंक्लूजन लिख के दे रहा है, बस उसी के बेस पे, और कुछ नहीं है, ऑलरेडी डाटा पड़ा है।
आज का जो टाइम आ गया उस डाटा को यूज करने वाला आ गया। इससे पहले 5-6 साल 7 साल पहले चले जाओ, वो टाइम था कि डाटा को कलेक्ट करने वाला। अब डाटा बहुत कलेक्ट हो गया है, बहुत डाटा कलेक्ट हो गया है। अब उस डाटा से आउटकम प्रोडक्ट चैट जीपीटी वही तो है, और क्या है? दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैविंग अ रोल। पुरानी बहुत पिक्चर्स कलेक्ट कर ली, डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको मशीन लर्निंग के थ्रू एआई की फॉर्म में अब बहुत पुरानी पिक्चर्स को भी बहुत वो रीमॉडिफाई कर देते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ओल्ड पिक्चर्स को भी, दैट इज एआई। यही कुछ और है? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? कुछ ऐसा बोल रहा हूं जो समझ में नहीं आ रहा? डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई ये नीड है आज के टाइम का। आपको इससे आप भाग नहीं सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को तो ओनली अपनी मैकेनिकल डोमेन में रहना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इफ यू वांट टू एंटर इनटू द रिसर्च डोमेन, इफ यू वांट टू एंटर इनटू द स्पेशलाइज्ड डोमेन, आपको करना ही पड़ेगा। और इस लेवल पे स्टार्ट कर लोगे, दैट इज द मेन थिंग। नाउ व्हाई दिस पेपर वाज स्टार्टेड? सर क्या इससे पहले, ये पेपर स्टार्ट करने से पहले, क्या अदर देन कंप्यूटर साइंस अदर ब्रांच का बच्चा क्या उस डोमेन में जा नहीं सकता था? डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई में यस जा सकते थे। अब प्रॉब्लम कहां भी आती थी कि कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट जब डाटा साइंस, एआई के अंदर जब स्पेशलाइज के लिए जा रहा है मास्टर्स में, इजी है। लेकिन जब मैकेनिकल वाला स्टूडेंट उस डोमेन में जा रहा है तो उसको शुरू में महीना 2 महीने का बहुत एफर्ट करना पड़ता है। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने जाना ही है इसी डोमेन में तो तुम वो एफर्ट पहले ही करके आओ, वही पेपर दे के आओ जिस डोमेन में तुम जाना चाहते हो। एंड डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई इज नथिंग बट इट इज ओनली द मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की डोमेन है, इट इज ओनली मैथमेटिक्स। अगर आप मैकेनिकल से डाटा साइंस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे नहीं पूछेगा कोडिंग कोडिंग, कुछ नहीं पूछेगा। वो हल्का फुल्का पूछेगा कि डाटा साइंस होती क्या है, कैसे काम करता है, वो इतना सा पूछेगा। और आपसे पूछेगा आपका मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पूछेगा, रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड पूछेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। घबराना नहीं है इस चीज से कि पता नहीं क्या चीज है, सब कुछ नहीं है। हम लोग तब तक वरीड रहते हैं, हम तब तक वरीड रहते हैं, तब तक हमारे लिए चीजें डिफिकल्ट है जब तक हम उसको गो थ्रू नहीं कर लेते, जब तक हम वो काम कर नहीं लेते। उस टाइम तक वो चीज डिफिकल्ट लगती है। जैसे ही हमने कोई काम कर लिया, जैसे हमने चीज को वो गो थ्रू कर लिया, वो सारी चीजें इजी हो जाती है। यस और नो? जब तक हमने चीज नहीं पढ़ी थी मेरे लिए वो डिफिकल्ट था, जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया वो मेरे लिए इजी हो गया। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। सो इस डोमेन के बारे में डाटा साइंस, दिस वाज द रीजन कि दैट इज व्हाई दिस स्टार्टेड। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मेरे को 2 पेपर लिखने चाहिए, नहीं लिखने चाहिए? यस, आपको 2 पेपर लिखने चाहिए, लेकिन किस कंडीशन में लिखने चाहिए? देखो, इफ यू आर टारगेटिंग द जॉब और द पीएसयू ओनली, अगर आप गवर्नमेंट जॉब या पीएसयू की बात कर रहे हैं, देन यू हैव टू राइट द गेट इन योर ब्रांच ओनली। ये चीज दिमाग में रखना, लेकिन बाद में रिग्रेट होता है कि सर एक्सीमे में तो मेरा रैंक 10 आ गया, मेरे को कोई पीएसयू अलाउ नहीं कर रहा। नहीं करेगा। अगर आप पीएसयू टारगेट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हो, तो जिस डोमेन में आपका बीटेक है, जिस ब्रांच में आपका बीटेक है, उसी ब्रांच में आपका गेट का एग्जाम होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरा चीज, सेकंड पेपर आपको वो चूज करना चाहिए कि जिसके थ्रू, क्योंकि सेकंड ऑप्शन के थ्रू तो आपको ओनली हायर स्टडीज का ही ऑप्शन बनेगा। तो हायर स्टडीज के हिसाब से जो इतने सारे गेट पेपर आपको दिख रहे हैं, तो वो डोमेन सिलेक्ट करना कि जिस डोमेन में तुम अपना स्पेशलाइजेशन चाहते हो। कि अगर सपोज मेरे को डाटा साइंस के डोमेन में जाना, तो सेकंड पेपर डाटा साइंस दो या ओनली डाटा साइंस का फर्स्ट पेपर दो। तो इस तरीके से डिसाइड करना। ओनली थिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, कि अगर आपने जॉब का ऑप्शन देख रहे हैं, पब्लिक सेक्टर का ऑप्शन देख रहे हैं, देन ओनली यू हैव टू राइट द गेट इन योर ओन ब्रांच। अदरवाइज यू कैन राइट थ्रू एनी ऑफ द सेकंड पेपर, अदर ब्रांच से आप अपना पेपर लिख सकते हो। अगर आप स्पेशलाइजेशन, अगर आप हायर स्टडीज के डोमेन देख रहे हैं, 2 पेपर लिखने चाहिए? यस, लिखने चाहिए। रीजन उसके पीछे क्या है? देखो, मैंने पूरा साल मेहनत किया, 1 साल मैंने पूरा मेहनत किया गेट एग्जाम के लिए, लेकिन गेट का एग्जाम होता है 3 घंटे का। यार वो 3 घंटे मेरी लाइफ के शायद अच्छे नहीं थे। बुरा वक्त भी तो आता है ना किसी न किसी का, हर किसी का आता है। शायद वो 3 घंटे मेरे लिए अच्छे नहीं निकले। मेरा तैयारी अच्छा था, मैंने गेट का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे अटक गए, मेरा सॉल्व ही नहीं हुए, मेरा मोरल ही डाउन हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया। डेफिनेटली आपका पेपर शायद उस दिन अच्छा ना हो। तो इसका तरीका क्या करने का? यार पूरा साल तो नहीं वेस्ट कर सकते हैं, तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन भी है कि तुम दूसरा पेपर भी दे सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको 2 पेपर देने का। थर्ड ईयर में क्यों देना है? थर्ड ईयर में इसलिए देना है, और थर्ड ईयर में अगर आप देना चाहते हो, इफ यू वांट टू राइट द गेट इन द थर्ड ईयर, राइट विद द सेकंड पेपर ओनली। इजी वाला उठाओ जिसमें सिलेबस बहुत कम होता है।
लाइक फॉर एग्जांपल एक्सी, एनवायरमेंटल साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें सिलेबस आपकी कोर ब्रांच से कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि कॉलेज के साथ साथ मैनेज करना है, एंड यू कैन इजीली डू दैट, यू कैन इजीली डू दैट विद द कॉलेज, क्योंकि जो कॉलेज में सब्जेक्ट चल रहे हैं ना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैरेलल लगाते चले जाओ। जो भी सब्जेक्ट आपका कॉलेज में चल रहा है, हाइड्रोलॉजी चल रहा है तो हाइड्रोलॉजी पढ़ते पढ़ते साथ के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते जाओ, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते चले जाओ। अगर आपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कम से कम 10 बार अगर आपने हाथ से लगा लिए, डैम श्योर मोर देन 40 यू कैन इजीली स्कोर इन द गेट एग्जाम। लेकिन 10 बार लगाने हैं, कंडीशन ये है, और हाथ से लगाने हैं, देखना नहीं है कि अच्छा ये क्वेश्चन है पीछे सॉल्यूशन देखा हो गया, ऐसे नहीं होगा। अगर आपने हाथ से लगा लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 बार, यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 40 मार्क्स इन द गेट एग्जाम। कट ऑफ वगैरह रफली जनरल कैटेगरी के लिए किसी भी ब्रांच का इन आपकी 3 ब्रांचेस से रिलेटेड कुछ 24-25 के आसपास रहता है जनरल कैटेगरी के लिए। और इस बार एक और चीज हुई है, जो ये पीएसपीसीएल ने गेट के थ्रू जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट किया है, 16 नंबर पे क्वालिफाई हो रहा है फॉर रिजर्व कैटेगरी और 16 नंबर वाला असिस्टेंट इंजीनियर लग गया। 25 मार्क्स पे इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ हो रहा है, 25 मार्क्स का जो लास्ट स्टूडेंट है वो भी असिस्टेंट इंजीनियर लग गया है। तो ये यू नेवर नो कि कैसे सिचुएशंस कैसे चेंज होती है, यू नेवर नो फॉर दैट। मेहनत करो, टारगेट वो चीज दिमाग से निकाल दो कि इसके बाद का क्या होगा। टारगेट मेरा मेन लिया हुआ है कि मेरे को पीएचडी करनी है यूएसए की टॉप 20 यूनिवर्सिटी से, ये मेरा फाइनल गोल है। उसको कैसे अचीव करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले गेट का एग्जाम अच्छा देना है, फिर मेरे को मास्टर्स के लिए आईटी में एंटर करना है, वहां पे मेरे को सीजीपी अच्छा मेंटेन करना है, वहां पे मेरे को प्रोजेक्ट अच्छा मेंटेन करना है, उसके बाद मेरे को स्टेटमेंट पर्पस अच्छा लिखना है, मेरे को यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई करने हैं, मेरे को प्रोफेसर्स आइडेंटिफाई करने हैं, मेरे को उनको मेल करना है, कैसे ड्राफ्ट करना है, एसओपी कैसे लिखना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ। लेकिन एक फाइनल टारगेट जरूर बनाओ। मेरे को टारगेट लेना है सर मेरे को आईएसआरओ ही जाना है। मतलब पीपल आर क्रेजी। आईएसआरओ के बारे में मेरे को नहीं पता कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, आप लोगों को पता है नहीं पता। आईएसआरओ एवरी ईयर दे कंडक्ट देयर ओन एग्जाम फॉर साइंटिस्ट बी। साइंटिस्ट बी के लिए अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है, राइट। आईएसआरओ 2020 के बाद उन्होंने एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया, इस बार उन्होंने रिक्रूटमेंट लेके आए हैं। एवरीबॉडी नोज कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, वही एक रीजन होगा, लेकिन अदरवाइज आईएसआरओ हर साल लेता है। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर, जितना भी लिखा हुआ है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और पीपल ने जिसने कॉल करना होता है मेरे को ही कॉल करते हैं। पीपल कॉल्ड, जब आईएसआर को रिक्रूटमेंट आया, मतलब इतने क्रेजी थे, सर वी वर वेटिंग दिस थिंग फ्रॉम द लास्ट 3 years, वी वांट टू एंटर ओवर देयर, सर आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, सर आई वांट टू, आई फील प्राउड। मतलब उन्होंने टारगेट लगाए हुए हैं कि मेरे को जाना है, तो बस यही चीज टारगेट लेके लगे, चाहे उसको साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे। पीपल आर क्रेजी अबाउट द थिंग्स। ये क्रेज यहां पे भी लेके आना आपने, और ये क्रेज आपको अपने अंदर भी लेके आना है, और ये रेगुलर मोटिवेशन के साथ होता है, रेगुलर गाइडेंस के साथ होता है, तब ये चीज का मोटिवेशन आता है। ये चीज टारगेट लेके चलोगे, ये चीज करके चलोगे, डेफिनेटली आज से 5, 7, 8, 10 साल के बाद दोबारा से एक बार बात करेंगे कि अब बताइए कंपैरेटिव एनालिसिस की कौन किस स्टेज पे है। एक और लाइफ में बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो कि जब आप बीटेक पास करते हो ना, तो इमीडिएट कंपैरिजन करते हो कि मेरे साथ वाले को तो कुछ का प्लेसमेंट हो गया, मेरे साथ के कुछ तो फॉरेन जा रहे हैं, मेरे साथ तो कुछ तो ये कर रहे हैं। कंपैरिजन इमीडिएट नहीं होना है बच्चे, इमीडिएट नहीं करना है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो किया है वो रैट रेस के कारण किया है। अभी तक आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं है, उस वे में सोचा नहीं है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। इस रैट रेस से बाहर हो जाओ, इस रैट रेस से बाहर हो जाओ। अब मैं आपको पूछ रहा हूं सभी को कि सिविल क्यों लिया, सर गवर्नमेंट जॉब चाहते थे। मैकेनिकल क्यों लिया, सर ये था। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये था। मेजॉरिटी का रीजन ये होता है ये चीजें ज्वाइन करने का, क्योंकि सर वो कर रहा था तो इस कारण से मैंने कर ली, सर उसने ये बोला ये कर लिया, सर पापा ने ये बोला ये, सर उन्होंने किसी से बात की थी। तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स के यही रीजन होते हैं अपनी ब्रांच या बीटेक करने के। लेकिन हम इस रैट रेस से तभी बाहर आ पाएंगे जब तक आप अपने आप को एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में नहीं लेके जाओगे, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा, तभी आप जस्टिफिकेशन कर पाओगे अपने करियर के साथ, मे बी शायद आप अपनी आने वाली जनरेशन के साथ। आप अपने बच्चों को किस तरीके का समझा सकते हो यार, तभी समझा पाओगे जब तक तुम्हें खुद को एक्सपोजर नहीं है, तुम लोग नहीं गाइड कर पाओगे। बिलीव मी, कंपैरिजन करना है 8-10 साल के बाद करना, अगर किसी के साथ भी करना है कंपैरिजन कि 8-10 साल के बाद किसी ने कोई रास्ता चूज किया, किसी ने कोई किया, किसी ने कोई किया, जो पीएसयू चला जाएगा। मान लो 15 लाख का पैकेज आज लग गया, साथ में एक बच्चे ने एमटेक ज्वाइन कर लिया, मान लो सपोज उसका 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप लग रहा है। अब वो अगर उसके साथ इमीडिएट कंपैरिजन कर रहा है, दैट विल बी द रॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे रॉन्ग होगा। कंपैरिजन करना है 6-7 साल के बाद करना। पीएसयू में ग्रोथ एक वही है, फिक्स है, 1 साल के बाद 5-7% का इंक्रीमेंट डीए में वो फिक्स्ड है।
15 लाख वाला 7 साल के बाद पहुंच जाएगा 22-23 लाख पे। चलो इतना लगा के चल रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट जिसने मास्टर्स किया स्पेशलाइज्ड डोमेन में, जहां पे पैकेजेस ही स्टार्ट होते हैं 15-20 लाख से, और प्राइवेट में ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं होता है। इफ यू आर कैपेबल, कोई लिमिट नहीं है। मतलब मैं 15-20 लाख मिनिमम बोल रहा हूं मैं। तो थिंक अबाउट 5-7 साल के बाद क्या होगा। एक लड़का था अमृत बेदी, उसने बीटेक किया इसी रियाद कॉलेज से, वो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट था ईसीपी का, राइट। और उसके बाद मास्टर्स किया उसने आईआईटी कानपुर से, पीएचडी भी उसने यहीं से किया आईआईटी कानपुर से। पीएचडी के लिए वो यूएसए चला गया। आज वो यूएस की डिफेंस सिस्टम के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और उसका सैलरी इन लैक्स ऑफ डॉलर्स। अब उसके साथ के ग्रुप के जितने भी बच्चे थे, जब उनको पता लगी ये बात, तो दे आर लाइक कि नहीं सर, ये तो हमने गलत डिसीजन लिया कि शायद उस टाइम पे इमीडिएट जॉब ज्वाइन करने का। अब ये कंपैरिजन उस स्टेज पे आके होता है, इमीडिएट कंपैरिजन नहीं होता है। इमीडिएट कंपैरिजन करना भी नहीं है, लेकिन अपने टारगेट सेट करो कि मेरे को करना क्या है फाइनली, इस तरीके से सेट करो, राइट। तो आई थिंक मेरे को आपको सारे आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, बहुत सिंपल है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी गेट के लिए। जो भी सब्जेक्ट साथ साथ चलते जा रहे हैं आपके गेट के लिए, जितने भी जोन से आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं कॉलेज में, चाहे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर का बुकलेट का एक मार्केट से बुक परचेज कर लो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। बिलीव मी, दिस इज अ स्टार्टिंग, जहां से आप कॉलेज में साथ में रहते रहते आप इजीली कर सकते हो। सर कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें, हर किसी को पता है, आप भी इस चीज को यस बोलेंगे कि यस, कॉलेज में जब आप फाइनल एग्जाम या जब भी आप एग्जाम के लिए जाते हो तो एक दिन पहले ही पढ़ते हो यार। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करेंगे। टाइम यूटिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कि हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर 24 आवर्स। मस्ती भी करो, खेलो कूदो भी, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम अपना एक शेड्यूल बनाओ, 2 से 3 घंटे का शेड्यूल बनाओ। एटलीस्ट जो सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, वो अपनी प्रायोरिटी को इंक्रीज करो कि फाइनल ईयर इसी बार पेपर देना है। 29th इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द गेट एग्जाम। इसी महीने का एक्सटेंड होकर जाएगी तो तुम्हें पैसे ज्यादा लगेंगे। 29th ऑफ सितंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस गेट एग्जाम। जिसने भी अप्लाई करना कर देना। थर्ड ईयर के बच्चे और फाइनल ईयर के बच्चे जो अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी मैंने बड़ा सिंपल बता दिया। कॉलेज के साथ साथ जो सा सब्जेक्ट चल रहा है उसको करना स्टार्ट कर दो। मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 30 नंबर में से इजीली यू कैन स्कोर 25 मार्क्स। 25 मार्क्स तो इमीडिएटली ले सकते हो आप, अगर आपका ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज नथिंग बट योर 10वीं तक का मैथमेटिक्स होता है। उसके बाद टेक्निकल में भी आप अपना डिसाइड करो कि मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उनको पहले करना स्टार्ट करो, फिर आप आ जाओ उन डिफिकल्ट सब्जेक्ट को, और 1-2 सब्जेक्ट आप इजीली यू कैन लीव, आप छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल अब सिविल की बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर को आप छोड़ सकते हैं। मैकेनिकल की बात करें तो आप इंडस्ट्रियल वगैरह या वाइब्रेशन वगैरह जो तो आपको लगता है कि शायद थोड़े ज्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उनको छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क एट द एंड ऑफ द डे ये पड़ेगा कि मैं सर 70 नंबर का प्रिपेयर करके गया, मेरे आए कितने। अगर 100 नंबर का प्रिपेयर करके ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, ऑब्वियसली आ सकते हैं, लेकिन अगर उससे वो 70 नंबर वाला स्ट्रेटेजी भी टोटली चेंज हो रहा है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उसका फायदा नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर 70 मार्क्स का प्रिपेयर करो, लेकिन 70 में से 50 मार्क्स लाने तक का प्रिपेयर करो। इस तरीके से प्रिपेयर करो। अगर 100 मार्क्स का प्रिपेयर कर रहे हो, टारगेट करो कम से कम मेरे 70 प्लस आने चाहिए, तभी उसका बेनिफिट होगा, अदरवाइज उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो इस तरीके से करो। स्ट्रेटेजी वेरी सिंपल है। स्ट्रेटेजी को कोई वो नहीं करना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बहुत सिंपल करना है। 24 घंटे डिवाइड करो, 8 घंटे कॉलेज के, 8 घंटे गए मेरे सोने के, 2 घंटे और मस्ती करने के, 3-4 घंटे कम से कम निकालो यार अपनी प्रिपरेशन के लिए, उस चीज के लिए जिसका जो आपने अपना फाइनल गोल, फाइनल टारगेट सेट किया हुआ है। 3-4 घंटे कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर कल संडे है, इस 4 घंटे को मैं कल 8 कर लेता हूं, आज रहने देता हूं। नहीं होगा, बिलीव मी। रिचुअल मेंटेन करना पड़ता है। रिचुअल, अगर डेली कहीं पे हम अपना नहा रहे हैं, डेली खाना खा रहे हैं, तो यार ये चीज भी तो हमारी रूटीन में आ जानी चाहिए ना, डेली बेसिस पे। इस तरीके से आपने करना है, बहुत सिंपल रखना है स्ट्रेटेजी को, बहुत ही सिंपल, राइट। इन द एंड एनी क्वेरी इफ यू आर हैविंग, कोई भी किसी तरीके का क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकता है कोई किसी। हाँ जी, हाँ, यू आर एलिजिबल फॉर दैट, यू आर एलिजिबल टू राइट। बांग्लादेश, नेपाल, कोई स्टूडेंट एलिजिबल, कोई भी इसमें है कंट्री के, आप लोग एलिजिबल हैं। म्यांमार से एलिजिबल हैं आप लोग, यस यू आर एलिजिबल फॉर दैट, आप लिख सकते हैं। पॉइंट विल बी फॉर द जॉब, राइट। हायर स्टडीज के लिए इट इज ओपन, लाइक यू केम हियर फॉर द हायर स्टडीज, राइट। राइट द गेट एग्जाम, यू कैन आल्सो एंटर इनटू द आईआईटीज, आप एंटर कर सकते हैं, वहां से प्लेसमेंट ले सकते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द पीएसयू जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब,
उसका कुछ कंडीशंस होता है कि आप इस डेट से पहले आप यहाँ पे माइग्रेट हो गए होने चाहिए, वो कंडीशंस होती हैं, वो बस चेक करनी है। अगर वो फुलफिल करते हैं देन आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द PSU जॉब्स। अदरवाइज टू राइट द गेट एग्जाम, टू अप्लाई फॉर द हायर स्टडीज, टू गेट द जॉब फ्रॉम देयर, इट इज ओपन, राइट। हाँ, PSU के देखो नोटिफिकेशन दो टाइम पे आते हैं, दो स्टेजेस पे आते हैं। लाइक दिस गेट एग्जाम इज गोइंग, गेट फॉर्म फिलिंग इज गोइंग ऑन। आजकल PSU नोटिफाई सिर्फ इतना सा दे रहे हैं दैट वी विल रिक्रूट थ्रू द गेट 2024। अभी इस टाइम पे इतना सा नोटिफिकेशन आ रहा है मेजॉरिटी PSUs का कि हम लोग गेट 2024 के बेस पे अप्लाई एलिजिबल करेंगे, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब गेट का एग्जाम हो जाता है, गेट के रिजल्ट के बाद मेजॉरिटी PSUs का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है। मींस इट इज नियर बाय फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 3-4 महीने हैं ये गेट का फॉर्म फिलिंग, सॉरी PSUs का फॉर्म फिलिंग चलता है फरवरी, मार्च, अप्रैल में, इस टाइम पे। और इसके पैरेलली अप्रैल में से ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेजॉरिटी PSUs इंटरव्यू तो लेना ही है, कईयों में GD भी होता है, कईयों में ग्रुप टास्क भी होता है। अच्छा, जैसे अभी कोचिंग शिपयार्ड का कल रात ही वो है शॉर्टलिस्टिंग, उसमें राइटिंग स्किल का भी है, एक एडिशन पार्ट है, GD है, राइटिंग स्किल है, एंड देन इंटरव्यूज देयर। तो हर इंटरव्यू GD उसका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। एनी अदर क्वेरी? यस। Second paper, your branch is civil engineering. Yes, please. See, second paper, as I already shown you, कि सिविल ब्रांच के लिए जो सेकंड पेपर है वो एनवायरमेंटल साइंस से आप दे सकते हो। लेट मी ओपन दैट। सी, आप एग्रीकल्चर से दे सकते हो, एरोनॉटिकल से दे सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स से दे सकते हो, नेवल एंड मरीन आर्किटेक्चर से दे सकते हो, और एक्सी से दे सकते हो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इफ यू आर टारगेटिंग द PSUs और द गवर्नमेंट जॉब देन यू हैव टू राइट द गेट इन द सिविल ओनली। बट इफ यू आर टारगेटिंग द हायर स्टडीज, सर मेरे को एनवायरमेंट डोमेन में जाना है, सी इफ यू राइट द गेट इन द एनवायरमेंट, तो जो डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स उसमें नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर नहीं होगा, सॉम नहीं होगा, स्टील नहीं होगा, RCC नहीं होगा, ये सब्जेक्ट उसमें नहीं होंगे, उसमें वाटर वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो व्हेन यू विल बी अप्लाइंग फॉर द हायर स्टडीज थ्रू द एनवायरमेंट, तो आप इन्हीं स्पेशलाइज्ड वाली डोमेन में कर सकते हैं। आप मेरे को इसमें से किसी का पूछो, मैं उसका बताता हूँ सिलेबस। सर नहीं नहीं नहीं, वो ब्रांच का अलग अलग सिलेबस होगा ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एनवायरमेंट की बात करूं, एनवायरमेंट में 9 टॉपिक्स हैं। 9 टॉपिक्स में क्या, एक तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वांट रीजनिंग तो रहेगा ही, उसके बाद इसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी रहेगा, उसके बाद इसमें आपका एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, उसके बाद इसमें आपका हाइड्रोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, ओपन चैनल फ्लो है इसके अंदर, उसके बाद एनवायरमेंटल ग्लोबल इश्यू से रिलेटेड एक टॉपिक है। ये टॉपिक्स है इसके अंदर, उसका सिलेबस डिफरेंट है लेकिन कुछ कॉमन भी रहेगा। जैसे इसमें से कुछ सब्जेक्ट आपके सिविल से मैच कर रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट कॉमन है और उसमें। और जो एक्सी एग्जाम स्पेशली मैकेनिकल और जो सिविल के स्टूडेंट है, एक्सी एग्जाम का ब्यूटी मैं बता रहा हूं। एक्सी एग्जाम में क्या होता है, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड मटेरियल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 में से आपको 2 सब्जेक्ट ही चूज करने हैं। 30 मार्क्स वो तो कॉमन है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 30 मार्क्स कॉमन है। और एक्सी के केस में जब आप लिख रहे हैं तो इन 4 सब्जेक्ट्स में से आपको 2 सब्जेक्ट ही चूज करने हैं, और 2 सब्जेक्ट्स में से 35 मार्क्स का पेपर आएगा वो, तो ऐसे वो टोटल 100 मार्क्स का बन जाएगा। तो जो ओनली हायर स्टडीज टारगेट कर रहे हैं, तो इन 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट वो चूज कर लो जिस डोमेन में आप फर्दर अपना हायर स्टडीज डोमेन में जाना चाहते हो, तो वो कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने बोल दिया कि अगर गेट के थ्रू अगर आप अपने कोर्स से नहीं लिख रहे हो तो PSU नहीं मिलेगा। नाउ कम टू द हायर स्टडीज पार्ट। जिस डोमेन से आप लिख रहे हो, एनवायरमेंट से लिख रहे हो तो वाटर वाले सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, एक्सी से लिख रहे हो तो डिजाइन वाले ओपन हो जाएगा, एनवायरमेंट ओपन नहीं होगा। लेकिन थ्रू दीज गेट सेकंड पेपर आप लोग एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर द नॉन कोर डोमेन्स लाइक डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एरोस्पेस, मटेरियल साइंस। इन डोमेन्स के लिए आप लोग ओपन है अप्लाई करने के लिए, राइट? ये ऐसे है चीजें। यस, एक और क्वेश्चन था वहां पे। हाँ क्या कह रहे हो? देखो, प्रिपरेशन और रिवीजन पैरेलल चलेगा, प्रिपरेशन और रिवीजन पैरेलल चलेगा। मान लो सपोज आप आज स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन करना, पेपर है फरवरी में, आज जो सा सब्जेक्ट उठाया है ना उसको वहां तक कैरी कैसे करके लेके जाना है, ये आपका प्रिपरेशन का पार्ट भी है या रिवीजन का पार्ट भी है।
इसका तरीका ये होता है कि मान लो आप 6 घंटे लेके चल रहे हो ना अपनी स्ट्रेटेजी में, कि आज से मैं 6 घंटे देना स्टार्ट कर रहा हूं, तो 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करो पैरेलल, एक सब्जेक्ट से कभी स्टार्ट नहीं करना, मैथमेटिक्स स्टार्ट करो, साथ में अपना कोई टेक्निकल सब्जेक्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। जैसे एक टेक्निकल प्रिपेयर हो गया आपका, दूसरा टेक्निकल उठाओगे तो पहले वाला कहां जाएगा, फरवरी तक कैसे कैरी करोगे। उसका तरीका ये होता है कि उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब पूरी थर्मोडायनेमिक्स को आप 10 पेजेस में कर वो कर दो। ब्रांच क्या आपका सीएस, कंप्यूटर साइंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सी डाटा स्ट्रक्चर है या टीओसी है, एल्गो है, उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को उसको शॉर्ट नोट्स में ले आओ, और उस शॉर्ट नोट्स में उतना का पार्ट लिखना है जिसको रिवीजन करके आपके प्रीवियस ईयर पेपर लग जाए। समझ में बात, शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका है, हमें डेफिनेशंस नहीं लिखनी, हमने थ्योरी नहीं लिखना, उसमें हमने उतना सा पार्ट लिखना है कि जिसको मैं रिवीजन करूं जल्दी से और मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लग जाएं। ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो जो रिवीजन करनी है वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू करनी है, और जो क्वेश्चन है वो पैरेलल लगाने हैं। अभी 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, महीने के बाद 3 सब्जेक्ट पैरेलल चलाओ, उसके बाद 4 सब्जेक्ट पैरेलल चलाओ, टाइम को अकॉर्डिंगली डिवाइड करो, ऐसे करना पड़ेगा। अगर आप इसी बार का गेट एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो पूरा सिलेबस अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ सब्जेक्ट लाइक कोआ है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, एक साइड पे रख दो। तो जो इजी सब्जेक्ट्स हैं पहले उसको पकड़ो, 60-70 नंबर का प्रिपेयर करो और अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना स्टार्ट कर दो। सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है, जो सबसे कम यहां पे लोग बैठे हैं वो कंप्यूटर साइंस के हैं, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हायर स्टडीज करने का है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को है, जो सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि बीटेक लेवल पे इमीडिएटली उसको जॉब मिल जाता है। वही कंपनी जो इनको 15-20 लाख यहां दे रही है, वही कंपनी 50 लाख प्लस देगी 2 साल के बाद। सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कंप्यूटर साइंस को मास्टर प्रोग्राम करने का, ऑल दो बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल है ये चीज, राइट। एनी क्वेश्चन? जैसे एग्जाम तो मैकेनिकल का हो गया और दूसरा मैकेनिकल का हो गया, तो सर उसमें तो हमारा सेम सब्जेक्ट होगा, बस थोड़ा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप सेकंड प्रोडक्शन से लिख रहे हो तो प्रोडक्शन के अंदर थर्मल वाला पार्ट नहीं आएगा। आईएन इंस्ट्रूमेंटेशन वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा आपके लिए, वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, उससे मत लो। टीआई से आप दे सकते हो, ये देखो आप एरोनॉटिकल से दे सकते हो, डाटा साइंस हो गया, आईएन छोड़ दो, ये इंस्ट्रूमेंटेशन वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए होता है ज्यादातर, राइट। नेवल एंड मरीन आर्किटेक्चर ये पिछले साल ही स्टार्ट हुआ है ये गेट का पेपर, राइट। और प्रोडक्शन से दे सकते हो एचसी। तो मेरी तरफ से अच्छा, दूसरा फिर ये भी डिपेंड करना है कि आप ये इस गेट के थ्रू इसको यूज कहां पे करने वाले हो, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। तो एक्सी, पीआई और आपका डाटा साइंस अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड है, या आपका एरोनॉटिकल, तो इसके थ्रू देंगे तो आपको बेनिफिट होगा। हाँ, यस, एनी अदर क्वेरी, एनीवन, एनी अदर क्वेरी? हाँ, मैंने बताई आपको 5 यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, एनयूएस, एनटीयू सिंगापुर, एनयूएस सिंगापुर, आरडब्ल्यूटीएच, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक और क्राइनफील्ड। ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं जिसके थ्रू आप गेट के थ्रू जा सकते हो, अदरवाइज विदाउट गेट तो पूरा वर्ल्ड है एमएस प्रोग्राम के लिए। और रोबोटिक्स के डिपेंड अगेन यही करता है कि आप किस डोमेन में एंटर करना चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो उसके बाद। रोबोटिक्स डोमेन में चाहते हो, मैकेट्रॉनिक्स वगैरह, रोबोटिक्स वगैरह इसी डोमेन में रहना चाहते हो, तो आप दे सकते हो पेपर मैकेनिकल के साथ। मैकेनिकल की बजाय एक्सी से पेपर दे लो, हाँ, एक्सी से पेपर दे सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स से आप एलिजिबल हो देने के लिए, मतलब ये देख लो कि आपका जो टेम्परामेंट है वो टुवर्ड्स मैकेनिकल वाली डोमेन वाली साइड ज्यादा है, मतलब डिजाइन वाली साइड ज्यादा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड ज्यादा है, किस डोमेन वाली साइड ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कौन सा पेपर देना आपने। हाँ, यस, एनी अदर क्वेरी, एनीवन? हाँ, जितनी मर्जी बार दे दूं, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है। वैलिड होना 3 साल ले। डॉक्यूमेंट सिंपल बीटेक, बीटेक इज द रिक्वायरमेंट। और दूसरी चीज है कि जिन्होंने तुसी 3rd ईयर ਵਿੱਚ अप्लाई करोगे ना, ਤਾਂ ਇੱਕ परफॉर्मा ਹੁੰਦਾ सर्टिफिकेट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ एचओडी ਤੋਂ ਜਾਂ प्रिंसिपल डायरेक्टर ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਫਿਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਪलाई ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वी आर गेटिंग लेट, एनी अदर क्वेरी? ऑल्दो कि मैं यहीं पे हूं, इसके बाद सेशन के बाद आप मेरे से मिल सकते हैं। सो दिस इज द दिस इज अ लिंक, दिस इज अ स्कैनर फॉर अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो हमारा यूरोपीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये इसके थ्रू, हाँ, इसमें है स्कैनर सारा, तो इसको फॉलो करो। और मैं आप लोगों का सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, पेशेंस रखनी है उसके अंदर, क्योंकि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको चीजें बताता चला जाऊंगा, पेशेंस रख के बैठना थोड़ा सा, राइट। नेक्स्ट इज वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड है। अगर कोई वहां पे पर्सनली आके मिलना चाहता है तो यू कैन मीट अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी। कि आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लैरिटी चाहते हैं, यू कैन आस्क मी,
right? This is the address, and my contact number will be available on all the platform, either the Engineers Career Point, either Yourpedia Global or Yourpedia. Everywhere our this my contact number is there. Thank you very much and all the best to all of you. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके.